آگے آ جائیے. اس سارے انیشیٹو کا بنیادی مقصد آپ دوستوں کے ساتھ ان ایشوز پہ مکالمہ ہی تھا. جن ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, یا ایون ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو پالیٹکس کرتی ہیں ان کے اندر بھی ان ایشوز پہ اپنے کارکنوں کو تربیت نہیں دی جاتی, ڈسکشن نہیں کی جاتی اور آگاہی نہیں فراہم کی جاتی. اس میں ہم جناب ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے نامور ہسٹورین ہیں, اور انہوں نے وہ فریضہ انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے اس کو سائنسی بنیادوں کے اوپر انہوں نے مرتب کیا ہے, اور ایک بڑا تاریخی ان کا کنٹریبیوشن جو ہے یہ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. اسی طرح جواد احمد صاحب ہیں, انہوں نے یہ سارا انیشیٹو جو لیا ہے رائز فار پاکستان کا, اس کے پیچھے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے رولنگ کلاس جو پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور جس طریقے سے وہ پالیسیاں عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے, طالب علموں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے, نوجوانوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے, اس حوالے سے ان کو سمجھنے کے لیے وہ بنیادی ایشوز کو سمجھا جائے جن کو سمجھ کے ہم تمام پالیسیوں کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ ان کو تبدیل کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب جواد احمد صاحب سے جو چیئر پرسن ہیں رائز فار پاکستان کے, کہ وہ رائز فار پاکستان کا جو تعارف اور مقاصد ہیں وہ آپ سے شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. آپ پہلے مجھے بتائیں آپ کس کس جگہ سے آئے ہیں؟ مطلب سارے ایک جگہ یونیورسٹی سے, لیکن کہاں سے, آپ کہاں سے؟ اچھا آج نہیں آیا آپ اچھا جی, آپ ایسی کالج پنجاب یونیورسٹی. اچھا اچھا, آپ سوری میں سمجھا آپ کیا بتا رہے ہیں. اچھا اچھا رائٹ. آپ سب یو سی بی سے ہیں؟ اچھا اچھا, I'm sorry, I didn't know it. I'm sorry. اچھا, you just a company name? Okay, that's good. Thanks for coming. اچھا, میں آپ کو اتنا صرف پہلے بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے اتنا عرصہ میں نے زندہ بھی رہا ہوں, آپ کی طرح سے آپ بھی جیتے ہیں, میں بھی جیتا ہوں, تو زندہ رہنے کے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں. آپ نے کھانا پینا ہوتا ہے, آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, آپ جہاں سے بھی آئے ہیں یہاں تک آپ کو پتا ہے آپ یا تو پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں یا کرایہ دے کے آئے ہیں کہیں پہ. تو اس کے علاوہ آپ نے بیمار ہو جائے تو دوائی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور کپڑے تو آف کورس امپورٹنٹ ہے, وہ تو انسان کی سویلائزیشن نے سکھایا کہ پہننے یہ سب نے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان پہ ایسے لگتے ہیں, یہ کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہم لائف میں جو ہم چلتے ہیں آگے موت تک ہم سفر طے کرتے ہیں, اس میں ہم سب کے ہر وقت کوئی نہ کوئی پیسے لگ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے اوپر. پیسہ تو خیر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ایک ٹرانسلیشن ہے بیسکلی, ایک ایسی کموڈٹی ہے یہ جس کے ذریعے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں یا زندہ رہنے کے لوازمات حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں کوئی, چاہے آپ کوئی بہت بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو آخرکار پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب آپ سانس لے سکتے ہیں, اور جب آپ چل پھر سکتے ہیں, اور جب آپ کھانا کھا سکتے ہیں, اور جب آپ کپڑے پہن سکتے ہیں,
اس کے بعد باقی سارا سفر شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک گھر بھی چاہیے آپ کو جہاں آپ نے رہنا, اور ان سب پہ پیسے لگتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی زندگی میں, جو پری ریکوزٹ ہے زندگی گزارنے کے لیے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کیا ہوا؟ پیسہ. پیسے کو اگر ہم اس طرح کہہ لیں کہ وہ ریسورسز جن کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کو کم سے کم چلانا ہے, قائم رکھنا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ آپ کو نہیں بتائی جاتی, کسی کو بھی نہیں بتائی جاتی. اس معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب غریب آدمی ہوتا ہے یا ایک امیر آدمی ہوتا ہے یا مڈل کلاس کا ہوتا ہے یا ایلیٹ کا ہوتا ہے, ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے زندگی میں, ان کو بلکہ الٹا کہا جاتا ہے جی پیسے تو بڑی بری چیز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے امیر آدمی کے پاس پیسے ہو تو اس کو نیند نہیں آتی. آپ نے سنا ان کی باتیں, لیکن ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے بڑی زندگی اتنی گزاری ہے, سب لوگوں کو دیکھا ہے. امیر لوگ ویسے خوش رہتے ہیں, اور غریب آدمی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. مطلب وہ تو اس کو تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا ذہن پہ. حالانکہ اگر آپ غریب آدمی سے رہ کے دیکھیں, ایک ورکنگ کلاس کا آدمی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے ذہن میں بوجھ کیا, اس کی پوری زندگی ایک بوجھ ہوتی ہے. اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوچنی پڑتی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے. بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, یہ جو بچے کو کھانا کہاں سے ملے گا, شادی تو بات یہ ہے کھانا کیسے ملے گا, دوائی میرے ماں بیمار ہے اس کو کہاں سے لا کے دوں گا, یہ کیا بوجھ نہیں ہے, اس کو کیسے نیند آئے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی وہ چیز ہے جو میں نے وہ سنبھالا, اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کھانا بھی کھا رہا ہوں اچھا, کیونکہ میں مڈل کلاس سے بلانگ کرتا تھا. میرے والدین پروفیسر تھے, بہت امیر نہیں تھے, لیکن مجھے کھلا پلا بھی سکتے تھے, مجھے کپڑے بھی اچھے بنا سکتے تھے, جتنے اچھے سمجھے جاتے ہیں اس معاشرے میں. اچھے اسکول میں بھی پڑھ لیا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا, یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ چیز جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں, روپیہ کہتے ہیں, وہ کم مل رہا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی تمام زندگیاں جو ہیں فرق ہیں. افیکٹ نہیں صرف ہو رہی ہیں, وہ یہ پوری زندگی کا آپ سمجھے ہیں کہ یہ اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے پوری زندگی. اب میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کروں گا, یہ میں زیادہ لمبا اگر تھوڑا سا سر میں سے سوری آپ کو, مجھے پتا آپ کی تو میں بات بھی سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو میں نے بھی سننی ہے. تو آخرکار یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی ہوتی ہے وہ آپ کی کلاس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کلاس نہیں چینج ہوتی انسان کی, وہ جس طبقے میں پیدا ہوتا ہے اسی طبقے میں جیتا ہے. اس طبقے کے جس طرح کے مذہبی رجحانات ہوتے ہیں وہی اس کے ہوتے ہیں, اس طبقے کی جو روایات ہوتی ہیں وہی اس کی ہوتی ہیں, اس طبقے کے اندر جس طرح کی تعلیم حاصل وہ کر سکتے ہیں وہ اسی طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے. وہ طبقہ جس طرح پہلے اس کے جنریشنز میں اس طبقے کے اندر لوگوں کو ایک خاص طریقے سے معاشرے میں ضم ہونے کا موقع ملتا ہے یا ملنے کا موقع ملتا ہے, معاشرے کے اندر اپنے آپ کو کسی کام میں ڈالنے کا موقع ملتا ہے, اسی کام کے اندر وہ بھی شامل ہوتا ہے. مطلب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مزدور جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ بن جائے, ایکسیپشن ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں. مزدور کا بچہ مزدور ہی ہوتا ہے عام طور. اگر آپ 100 میں سے 99% لوگوں کی زندگی میں 99.999 لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کریں, ان کی جنریشن کو اسٹڈی کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ لوگ جس طرح تھے اسی طرح رہے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ سکے. آپ آبزرو کر لیجیے گا, اور آپ کو ہمیشہ ایکسیپشنز کا بتایا جائے گا. آپ کو کہا جائے گا دیکھیں جی جو محنت کرتا ہے وہ تو یہ بھی بن جاتا ہے, ایک آدمی یہ تھا اور یہ بن گیا. تو وہ معاشرے کی کوئی ایسی کوئی روایت نہیں ہوتی جس کو ہم قابل عمل سمجھ سکتے ہیں, یا وہ ہر ایک کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ایکسیپشن ہوتی ہے. اب اس ساری گفتگو کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زندگی ہے نا پوری, یہ ہماری طبقاتی کشمکش کا ہے پورا, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تسلسل ہے. ہم اپنے طبقے سے ہی باہر نہیں نکل پاتے, اور ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں تو معاشرہ جو ہے ہمیں دباتا ہے, سوسائٹی میں دباتی ہے. اور ایک بیسیکلی ایک طبقاتی, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل ہے اور جنگ ہے جو لوگ آپس میں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے, سوسائٹی میں پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم کو کہا جاتا ہے, چاہے وہ بادشاہت ہو, پہلے جو ہوتی تھی بادشاہ ساری زمین کا مالک ہوتا تھا اور تمام
रियाया का भी मालिक होता था, वो सारे महकूम होते थे उसके बाद जागीरदार आए, उन्होंने ज़मीनों पे अपने काम करना शुरू कर दिया गुलामों की तरह। लोगों को स्लेवरी इतनी ज़्यादा थी, आपको पता है हर जगह दुनिया में कि हर जगह पे कोई किस्सा ऐसा नहीं था जहाँ स्लेव ना हो। उसके बाद अब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम इस दुनिया में रहते हैं जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमायादाराना निज़ाम। इसमें भी एक्चुअली हम सब लोग इसके कैदी हैं। हम इस निज़ाम से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस निज़ाम में सिवाय चंद लोगों के जो कि इसके बेनिफिशरीज होते हैं। जब आप निज़ाम को लिखते हैं ना किसी जगह के ये कैपिटलिज्म है, जब आप लिखेंगे कैपिटलिज्म तो आप उसके लवाज़मात नीचे लिखेंगे। मैंने कही था सोशियोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ मैंने बात की है, वो एक पिरामिड बनाते हैं ऐसे, वो इस तरह करके होता है, इस तरह और फिर इस तरह होता है। तो वो कहते हैं जी कि होता ये है जब सोसाइटी कायम होती है ना तो ये जो सबसे ऊपर है ना ये रूलिंग क्लास होती है, उसके बाद क्लासेस होती हैं और आखिर में मजदूर तबका होता है। वो आपको बताएंगे बिल्कुल आखिर में मजदूर तबका होता है जो बेचारा असल में सारे काम कर रहा होता है। आपको पता है इस पूरे कमरे में जो भी चीज़ लगी हुई है, जो भी चीज़ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब मजदूरों ने लगाई है हाथ से अपने। इसी तरह आप जो भी खाना वाना खाते हैं तो सारा जो सबसे पहली बुनियाद है जिंदगी जिंदा रहने की, वो एक दहकान जो है वो उसको ज़मीन से निकालता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो काम है, लेकिन उनको हम समझते हैं कि ये तो बड़े फजूल लोग हैं, मतलब इनका तो कोई सोसाइटी के अंदर कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो बहरहाल हमें एट द एंड ऑफ द डे सारी बात करने के बाद एक बात समझ आती, मुझे आई है कम से कम कि ये एक तबकाती कशमकश का पूरा सिलसिला है। जब तक इंसान तबकात में बटा रहेगा और इंसान रिसोर्सफुल सबको नहीं करेगा, सबके पास वही रिसोर्सेज नहीं होंगी जो कि किसी और के पास है। तमाम लोग उस ज़मीन में पैदा होने वाले तमाम गल्ले जो भी ज़मीन पैदा करती है, मैं ज़मीन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब तक उस ज़मीन पर पूरा ज़मीन में पैदा हुए हर उस ग्रेन को, हर उस अनाज के ज़र्रे को और हर वो चीज़ जो यहाँ प्रोड्यूस होती है उस तक उसकी दस्तरस नहीं होगी, इस दुनिया में कोई ना तो मुसावात है, ना कोई बराबरी है, ना ही कोई डेमोक्रेसी है। ये जमहूरियत नहीं होती कि जिसमें आपको आखिरकार ये कहा जाए कि जी जमहूरियत कुछ लोगों को ज़्यादा देगी, कुछ लोगों को कम देगी। और जमहूरियत चूँकि आखिरकार इंसान के राइट्स की बात करती है, वो कहते हैं ना इक्वल राइट्स टू अपॉर्चुनिटी, फिर फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत अगर वाकई इंसानों को देना चाहती है तो सिर्फ ये ना दे कि उनको बराबरी दे कि मौके की बराबरी। मौका तो हर एक को नहीं मिलता इसमें, ये मैं आपको बता दूँ पहले, झूठ बोलते हैं सब। डेमोक्रेसी में कोई सबको एक जैसा मौका नहीं मिलता। वो वाली डेमोक्रेसी जो इस वक्त पूरी दुनिया में है, जो सरमायादार निज़ाम को कायम करने के लिए कायम की गई है डेमोक्रेसी, वो हर एक को हर चीज़ नहीं देती। तो इसलिए इक्वल बेनिफिट जब तक नहीं होंगे ना, ये आखिरी फिक्रा मैं आप बोलूँगा, फिर डॉक्टर साहब मैं कहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि वो आपसे बात करें। जब तक इक्वल बेनिफिट्स नहीं होंगे, तमाम लोगों को तमाम चीज़ें नहीं मैसर हो सकेंगी, तमाम सहूलियात मैसर नहीं हो सकेंगी, तो डेमोक्रेसी का मुझे कोई फ़ायदा नजर नहीं आता। और अगर आप भी गौर करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तबकात तो ऐसे रखती है कि हमेशा कुछ लोगों को ख़ास तबके के अंदर रहने पे मजबूर रखती है और वो लोग सारी उम्र जो है उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी अगली नस्लें भी बाहर नहीं निकल सकती। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से हमने ये राइट्स ऑफ पाकिस्तान बनाया कि हम लोगों के साथ सोशल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें और आखिरी लेवल पे करें। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत, वो वाली जमहूरियत जिसके बारे में बात हो रही है, ये वो चीज़ है जो इंसानों की कॉन्शियसनेस जो होती है, शऊर की जो इंसानों की एक इस्तेदाद होती है, उसका सबसे छोटा जो है ना तरीका कि जिसके जरिए वो अपने शऊर के जरिए कोई चीज़ मांग सकें या चूज कर सकें, उसका सबसे छोटा तरीका है। ये बहुत बुरा तरीका है, लेकिन हमें इससे आगे जाना है। हम चाहते हैं इंसान उस शऊर पे, उस शऊर को हासिल कर सके जिसके बाद वो तमाम दुनिया को मांगे, वो तमाम हर चीज़ों पे अपना राइट मांगे। ये असल डेमोक्रेसी होगी। अगर कभी आएगी तो हम सबको के लिए काम भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे थोड़ी सी देर मुझे सुन लिया, मुझे बर्दाश्त किया। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि आप काइंडली
बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये बहुत शुक्रिया जवाद साहब और दोस्तों कि आपने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया। अभी जवाद ने काफ़ी अच्छी बातें की कि माशरे किस तरीके से बनते हैं, क्या उनके अंदर मसाइल पैदा होते हैं, और जैसा इन्होंने पिरामिड का जिक्र किया वो भी बड़ा दिलचस्प है कि सबसे ऊपर मतलब कि बादशाह होता है, वो कहता है कि वी रूल फॉर यू, नीचे होते हैं प्रीस्ट, वो कहते हैं वी प्रे फॉर यू, और सबसे नीचे आवाम पिछले में होते हैं, वो कहते हैं वी वर्क फॉर यू। तो ये तबकाती निज़ाम बड़ा पुराना है और किसी न किसी शक्ल के अंदर ये मौजूद रहा है। अगरचे अब उसकी शक्लें बदलती रही हैं, लेकिन ये है कि अभी तक हम उससे पूरी तरीके से जान नहीं छुड़ा सके। इसी तरीके से जमहूरियत के बारे में भी मतलब कि बहुत सी मतलब के राय हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा आज आपको उसकी तारीफ़ के बारे में कुछ बताऊंगा ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जमहूरियत जो हमें यहाँ तक पहुँची है हमारे पास, यानी मगरिब में जमहूरियत जिस तरह से आई है, जिस तरह से खुद पाकिस्तान में जमहूरियत आई है, ये किन किन मराहिल से गुजरती हुई आई है। तो ये ज़रा तारीख़ी शऊर अगर हो तो एक तो तारीख़ पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि कभी भी ज़माना एक जगह ठहरा हुआ नहीं रहता है, तब्दीली हमेशा से आती है। अगरचे तब्दीली को रोकने के लिए बड़ी क़ुव्वतें मौजूद होती हैं जो तब्दीली को रोकती हैं, लेकिन तब्दीली ज़रूर आती है और यही हमें तारीख़ का सबक मिलता है। आपने वो मशहूर बात सुनी होगी यूनानी फ़लसफ़ी थेल्स की, उसने ये कहा था कि कोई शख्स भी मतलब कि एक ही दर्जा में अपना पाँव 2 मरतबा नहीं रख सकता, क्योंकि जब आप दूसरी मरतबा रखेंगे पानी और आगे जा चुका होगा, किसी नए पानी में आप पैर रखेंगे। तो ये एक तारीख़ में बड़ी अहम चीज़ जो है वो तब्दीली की है। तो जमहूरियत का निज़ाम जो है वो भी उसी तरह से बदला। अब जमहूरियत चूँकि एक सियासी निज़ाम है, तो सियासी निज़ाम जो है वो पैदा होता है मतलब कि रियासत के बनने के बाद या रियासत की तश्कील के बाद। अब रियासत कैसे वजूद में आती है, होता ये है अगर आप तारीख़ को पढ़ें कि पहले मुख्तलिफ कबाइल होते थे, बिरादरियाँ होती थीं जो आपस में मिल के रहते थे, और हर कबीला या हर बिरादरी जो है उसके अपने कुछ रस्म रिवाज होते थे जिनके ऊपर वो अमल करते थे। लेकिन जब इन कबाइलों को मिलाया गया या इन बिरादरियों को मिलाया गया किसी एक शख्सियत ने या एक ग्रुप ने और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनी, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं कि इसने रियासत को तश्कील किया। और जब रियासत तश्कील होती है तो अब ये कबायली रस्म रिवाज जो हैं या बिरादरियों के जो तौर तरीक़े हैं वो बदल जाते हैं और उसकी जगह कानून आ जाता है कि अब कानून की हुक्मरानी होती है, सारी बिरादरियों को कबीलों के ऊपर वो कानून नाफिज होता है। तो रियासत के वजूद में आने के बाद 3 किस्म के निज़ाम सियासी निज़ाम जो हैं वो हम तारीख़ में देखते हैं। पहला निज़ाम जो है वो बादशाहत का है। बादशाहत के निज़ाम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें बादशाह के पास सारी ताकत होती है, सारे इख्तियारात होते हैं, और बल्कि ये भी हुआ है कि काफ़ी जगहों पे मसलन जैसे चीन के अंदर या जापान में या कदीम तहजीब मेसोपोटामिया में, मिस्र में बादशाहों ने यह ऐलान कर दिया कि वो खुदा के भेजे हुए हैं, खुदा के नुमाइंदे हैं, लिहाजा वो सिर्फ खुदा के सामने जवाब दें, अवाम के सामने जवाब दे जो है वो नहीं है। तो बादशाह के पास लामहदूद इख्तियार होते थे। अच्छा, जब यूनान के अंदर शहरी रियासतें बनी तो उनके पास ये इंतखाब था कि वो इनके 3 निज़ाम है वो किसका मुंतखब करें, यानी बादशाह जिसके अंदर सारे इख्तियार बादशाह के पास होते थे। जब उन्होंने इस निज़ाम को नाफिज किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि इस निज़ाम के अंदर बेखराबियाँ हैं, क्योंकि सारे इख्तियार जो हैं एक शख्स के पास जमा हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने एक दूसरा निज़ाम उसकी जगह वज़ा किया। वो दूसरा निज़ाम है जिसको कहते थे ओलिगार्की। ओलिगार्की को हम उर्दू में कह सकते हैं चंद सरी के एक आदमी नहीं बल्कि चंद लोग जो हैं वो हुकूमत करेंगे, यानी इख्तियारात किसी एक आदमी के पास जमा नहीं होंगे बल्कि 2, 3 या 4 आदमी जो हैं उनके पास इख्तियारात जमा होंगे। ये ओलिगार्की कहलाती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ओलिगार्की में भी इख्तियारात चूँकि तकसीम हो जाते हैं, लिहाजा इसके अंदर झगड़ा होता है और झगड़े की वजह से सही हुक्मरानी जो है वो कायम नहीं होती। लिहाजा तीसरा जो निज़ाम हुकूमत उन्होंने वज़ा किया उसको कहते थे डेमोक्रेसी। डेमो के माने हैं अवाम, यानी अवामी हुकूमत के, क्योंकि शहरी रियासतें थीं और इस वक्त आपको पता है आबादी ज़्यादा नहीं होती थी,
मसलन उस वक्त अगर किसी शहर की आबादी 25,000, 50,000 या 60,000 है तो वो भी बहुत होता है। लिहाजा एक शहरी रियासतों के अंदर ये मुमकिन हुआ एक ऐसी मतलब कि अब जमहूरियत कायम की जाए जहाँ हर आदमी को मतलब कि इख्तियार हो, वोट देने का भी इख्तियार हो, राय देने का इख्तियार हो, हुकूमत कैसे करनी चाहिए इसका भी इख्तियार हो। तो ये तीसरा निज़ाम हुकूमत भी मतलब कि यूनानियों ने किया। लेकिन होता ये था कि ये एक मतलब कि साइकिल जिसको कहते हैं गर्दिश के अंदर ये चलता था। मतलब बादशाह होती थी तो वो देखते थे कि इख्तियारात की वजह से करप्शन बहुत है, इसको ख़त्म कर देते थे। ओलिगार्की आती थी तो ये देखते थे कि इख्तियारात की वजह से तकसीम होने की वजह से सही इस्तेमाली नहीं होती थी, वो बदल के फिर जमहूरियत पे आ जाते थे। लेकिन जमहूरियत उनके यहाँ काफ़ी अरसे रही और जमहूरियत का तरीका जो था वो ये था कि बड़े मैदान के अंदर जमा हो जाया करते थे और वहाँ पर शहर के जो अहम मसाइल होते थे समाजी, माशी या मतलब कि अगर दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात रखना है तो उसमें आवाम से राय दी जाती थी। और इसी के साथ साथ जो है एक मतलब कि सियासतदानों का तबका भी वजूद में आया जो वहाँ पर तकरीरें करते थे। अगर कोई ये चाहता है कि भाई शहर के अंदर बेहतर सफाई हो तो वो खड़े होकर इसके ऊपर बात किया करता था। किसी ने ये चाहा कि भाई दूसरी रियासतों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो वो इस पर खड़े होकर बात करता था। तो हुआ ये है कि जब ये सियासतदानों का आए तो एक सियासतदान के लिए ज़रूरी था कि उसको अच्छा मुकर्रर होना चाहिए और ये भी ज़रूरी उसके लिए हुआ कि उसको अपनी बातचीत के लिए इस्तेदाल होनी चाहिए, उसके बाद दलील होना चाहिए। तो यूनान में फ़लसफ़ियों का एक गिरोह, एक जमात पैदा हुई जिसको कहते थे सॉफिस्ट। तो ये सॉफिस्ट जो हैं इनका काम ये था कि ये बाकायदा ट्रेन किया करते थे सियासतदानों को कि वो किस तरीके से तकरीर करें, यानी खिताबत हो, लफाजी हो और इस्तेदलाल भी हो, दलील भी हो, ताकि लोगों को मुतासिर जो है वो कर सकेंगे। तो ये और इसके लिए बाकायदा वो पैसे भी देते थे, मुफ्त में नहीं किया करते थे। और इसलिए अरस्तु इनसे बहुत मतलब कि तकरीरें करके लोगों को अपने जो भी अपनी राय होती थी उसके मुताबिक दिलाते थे। अच्छा, ये होता एक दूसरा ये था कि जब भी कहीं कोई फौजी मुहिम फ़र्ज़ कीजिए भेजी जाती थी तो यही असम्बली, जनरल असम्बली इसको कहते हैं, यही जनरल का इंतखाब किया करती थी। यानी इलेक्शन का तरीका भी था कि उसका इंतखाब ये लोग किया करते थे। और अगर कोई सियासतदान बदगुमानी में पाया जाता था तो तरीका ये था कि उसको 7 साल के लिए वो शहर से बाहर निकाल देते थे। जैसे एथेंस की रियासत ये थी कि उसको 7 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाता था कि 7 साल तुम बाहर रहो तो ताकि तुम पे जो चार्जेस हैं मतलब कि इसका इजारा हो तुम बाद में वापस ले आओ। और दूसरा क्या है, जो वोट देने का तरीका था वो जो अब आसार कदीमा के लोग हैं उनको वो चीज़ें मिली हैं, वो ठीकरियाँ मिली हैं। तो उन ठीकरियाँ जो हैं उनके ज़रिए से वोटिंग हुआ करती थी और वोटिंग का यानी तरीका था। लेकिन एक ख़ास बात ये थी अभी भी कि जमहूरियत पूरी तरीके से वहाँ पर मुकम्मल नहीं थी क्योंकि औरतों को बिल्कुल वोट देने का हक नहीं था। और क्योंकि ये माशरा जिसको कहते हैं पैट्रियार्टिकल माशरा था या पिदरसरी थी, लिहाजा औरतों को ये था कि वो घरों में रहें, उनको वोट देने का हक नहीं था और ग़ुलामों को वोट देने का हक नहीं था और गैर मुल्की जो थे उनको भी वोट देने का हक नहीं था। तो ये मतलब कि कुछ चीज़ें उनके यहाँ थी। फिर जमहूरियत का जिसको कहते हैं फाउंडिंग फादर आज के ज़माने में या बानी, जिसने कि जमहूरियत को मज़ीद इर्तिक़ा दिया ख़ास तौर से एथेंस के अंदर, उसका नाम था, एक कानूनदार था, सोलन उसका नाम था। क्योंकि हो ये रहा था कि जो मालदार लोग थे वो ये करते थे कि किसानों को यानी कर्ज देते थे और सूद के ऊपर, और जब किसान वो कर्ज अदा नहीं कर सकते थे, उनकी फसलें ख़राब हो गई या कुछ हुआ तो उनको ग़ुलाम बना दिया करते थे। ग़ुलाम बना के न सिर्फ उनको एथेंस की मार्केट में बेचा करते थे बल्कि उनको दूसरे मुल्कों में भी बेच दिया करते थे। तो सोलन ने आके एक तो कानून ये बनाया कि कोई एथेंस का शहरी जो है उसको ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा। और उसने ये कहा कि जिन लोगों ने एथेंस के शहरियों को कर्ज की वजह से ग़ुलाम बनाया है उनको आज़ाद कर दिया जाएगा और उनको असम्बली में सबको बराबर के हकूक़ मिलेंगे, बराबर का वोट देने का हक सबको होगा, यानी किसी किस्म का अमीर गरीब का फर्क जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से उसने जमहूरियत की, जिसको हम कहते हैं शहरी जमहूरियत की बुनियाद यूनान के शहर एथेंस में भी रखी गई और उसके अलावा एथेंस के अलावा दूसरे शहर थे उनमें भी रखी गई। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना होगा मशहूर जो फ़लसफ़ी है अफलातून या प्लेटो, उसने किताब लिखी है, किताब का नाम है रिपब्लिक यानी जमहूरियत। उसने इस किताब के अंदर
جمہوریت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پلیٹو خود بتا تو خود جمہوریت کا بہت زیادہ حامی نہیں تھا۔ حامی کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کے استاد اور ارسطو کو، سقراط کو جو زہر کا یعنی موت کی سزا دی گئی تھی وہ جمہوریت کے زمانے میں ہی دی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں عدالت ہوتی تھی اور عدالتوں کے اندر جیوری کا سسٹم تھا، اور جیوری 4-5 لوگوں کی نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً جب سقراط کا مقدمہ چلائے تو تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ جیوری کے اندر تھے۔ انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ یہ رائے دی کہ چونکہ سقراط نے نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کیا ہے اور دیوتاؤں کو برا بھلا کہا ہے، لہٰذا اس کو موت کی سزا دی جائے۔ لہٰذا افلاطون کوئی بہت زیادہ مطلب کہ اس کا حامی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک کنٹرول قسم کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ بات اس نے اپنی ریپبلک میں کہی، اور اس نے کہا کہ ایک تو جمہوریت کے اندر جو سربراہ ہیں جمہوریت کے ان کو فلسفی ہونا چاہیے، یعنی عقل مند لوگ ہونا چاہیے، دانشور جو ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ باقی ایک گروپ جو ہے وہ حکومت کرے، اور اس گروپ کا نام اس نے دیا گارڈین آف دا ریپبلک، کہ یہ جمہوریت کے گارڈین ہوں گے جو کہ حکومت کریں گے کسی فلسفی سربراہ کے اندر۔ اور اس نے کہا کہ یہ فلسفی اور یہ گارڈینز ہیں ان کے پاس کی نجی جائیداد نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے دیکھی کہ اس نے نجی جائیداد کی مخالفت کی ہے کہ نجی جائیداد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس نے یہ کہا، اور اس زمانے میں یعنی یہ 4 صدی قبل مسیح کی بات ہے، اس وقت اس نے یہ کہا کہ عورتوں کو پورے حقوق ملنے چاہیے۔ اس نے کہا یہ بات غلط ہے جو کہی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا عورتوں کو بھی موقع ملے تو وہ مردوں کی طرح سے کام کر سکتی ہیں، ان کو بھی حکومت کے اندر شریک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ گارڈینز ہیں ان کا کوئی خاندان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا خاندان جب سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے تو اقربا پروری ہوتی ہے، یہ اپنے مطلب کہ بیٹوں کو بیٹیوں کو ان کو مطلب کہ آگے بڑھاتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ تو یہ کمیون ہونی چاہیے گارڈینز کی، کہ جہاں پر سارے لوگ مل کے رہیں، کسی ایک کی فیملی جو ہے بنا ہو۔ یہ 3 باتیں اس نے اپنی ریپبلک میں کہی، یعنی افلاطون نے۔ افلاطون کے بعد جب ارسطو آیا تو ارسطو نے، حالانکہ اس کا شاگرد رہا تھا 40 سال تک، وہ مطلب کہ افلاطون کا شاگرد تھا، اس کی اکیڈمی بنائی تھی افلاطون نے، جہاں پر یہ آج کل آپ جو اکیڈمی کا نام سنتے ہیں نا، یہ وہیں سے دیا گیا ہے۔ تو اس اکیڈمی کے اندر 40 سال تک یہ رہا، لیکن جب یہ ارسطو کے بعد، افلاطون کے بعد اس نے خود اپنی ایک تعلیمی ادارہ بنایا جس کا نام لیسیم اس نے رکھا تھا۔ اس نے پھر اپنے استاد کی بہت سی باتوں کی مخالفت کی۔ اس نے ایک تو یہ بھی مخالفت کی کہ گارڈینز یا یہ جو فلسفی فیلڈ کا کنسیپٹ ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور عورتوں کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ نہیں، عورتیں تو ہوتی ہی ناقص العقل ہیں اور پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو بالکل اپنے استاد کی مخالفت کی، لیکن اس نے یہ بھی کیا کہ اس وقت یونان کی جتنی شہری ریاستیں تھیں ان کے سارے قوانین یعنی دستور جو ہیں ان کو جمع کیا، ان کی اس نے اسٹڈی کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، کون سی سیاست جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اس نے جس کو کہتے ہیں ایک مڈل بات جو ہے ریپبلک یعنی جمہوریت کا وہ حامی تھا، لیکن وہ اس بات کا بھی حامی تھا کہ جمہوریت میں یعنی سارے لوگوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ گارڈینس آف ریپبلک کی بات جو افلاطون نے کہی وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو جمہوریت کی بنیاد مطلب کہ یونان کی ان ریاستوں کے سے پڑے۔ جب یہ ریاستیں ختم ہوتی ہیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب سکندر کا باپ فلپ جو ہے، جو میسیڈونیا کا بادشاہ تھا، وہ یونان پہ حملہ کرتا ہے، شہری ریاستوں کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں اسی مطلب کی جمہوریت کو، وہ ہم پھر دیکھتے ہیں جب رومن ریپبلک قائم ہوتی ہے۔ جب رومن ریپبلک قائم ہوتی ہے تو ان کے یہاں بھی ابتدا کے اندر بادشاہت نہیں تھی، ان کے یہاں بھی ریپبلک تھی، اور انہوں نے بھی ریاست کے ادارے کچھ بنائے تھے۔ ریاست کا ان کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا تھا کاؤنسل ہوا کرتے تھے، ان کا بھی انتخاب ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سینٹ ہوتی تھی، سینٹ کے ممبرز جتنے بھی ہیں تو جو قبیلوں کے سردار یا بااثر لوگ جو ہیں وہ سینٹ کے ممبرز ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی تھی اسمبلیز میں عام لوگ جو ہیں اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے تھے۔ تو خاص بات جو تھی رومن ریپبلک کی کہ ان کے جتنے بھی ریاست کے عہدے تھے، جتنے بھی، سب کا انتخاب ہوا کرتا تھا، ججوں کا انتخاب ہوتا تھا، جنرلز کا انتخاب ہوتا تھا، اور سارے اہم فیصلے جو ہیں
वो सेनेट के अंदर हुआ करते थे, और अगर किसी फैसले को वो नहीं मानते थे तो उसको वो कहते थे वीटो करना। वीटो का मतलब था कि ना मानना। तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसको हम कहें रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो रोम में कायम हुआ। और एक खास बात थी कि यूनान की जो जमहूरियतें थी उनमें भी और रोमन रिपब्लिक कायम हुई उनमें भी इन सब में कानून की बाधा थी। कानून एथेंस की रियासत में भी कानून को पत्थर के ऊपर कंधा करा के मार्केट में रख दिया जाता था ताकि सारे लोग जो हैं उनको पढ़ें और देखें कि कानून क्या कहता है। और यही था रोमन रिपब्लिक के ज़माने में कि रोम का जो शहर उन्होंने बनाया, उस शहर के अंदर एक जगह थी कि जहाँ पर सारे लोग आके मिला करते थे, बातचीत करते थे, बहस मुबाहिसे होते थे। इसको कहते थे फोरम, या आप भी आजकल जो फोरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये वहीं से लिया गया है। ये फोरम होती थी, उसके अंदर सारे बहस मुबाहिसे जो हैं, तो वहाँ पर कवानीन कंधा करा के रख दिए गए थे ताकि लोग कवानीन को देखें। तो देखें यानी यूनान की शहरी रियासतों में और रोमन रिपब्लिक के अंदर हमें एक जो चीज़, दो बातें जो अहम मिलती हैं वो ये है कि एक तो इंतखाब का मसला है कि लोग जो हैं वो मुंतखब किया करते थे, इलेक्शन का सिस्टम जो था। दूसरा ये था कि कानून की पालादस्ती थी कि हर आदमी कानून से वाकिफ़ियत रखता था और अपने कानूनी हक के लिए जद्दोजहद भी करता था, लड़ता भी था, इसकी उसको मतलब कि दस्तरस थी। अब उसके बाद ये रोमन के बाद फिर जब ये हम देखते हैं जमहूरी रिवायतें जो हैं वो यूरोप के मुल्कों के अंदर फैलती। अच्छा, यूरोप के मुल्कों में जो फैली उसकी एक वजह ये हुई कि जब रोमन बादशाह यानी एम्पायर जो है वो ख़त्म होती है, तो रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद ये जगह जगह छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनके अपने चूँकि आपके मजबूत मरकज़ नहीं था, कोई बादशाह नहीं थी, तो रोमन एम्पायर के टुकड़े होने के बाद या उसके ख़त्म होने के बाद फिर एक जिसको कहते हैं यूरोप में फ्यूडल सिस्टम या जागीरदाराना निज़ाम जो है वो पैदा हुआ। ये फ्यूडल सिस्टम जो थे अपने अपने इलाकों में इन्होंने अपने किले बना रखे थे, अपनी फौजें रख रखी थी और एक तरह से इंतहाई ताकतवर थे। अब हुआ ये है कि इन फ्यूडल्स के अंदर जो ज़्यादा ताकतवर फ्यूडल हुआ करता था वो एक तरह से उसकी अपनी मरकज़ी हैसियत हासिल कर लेता था, जिसको कहते हैं कि बाकी फ्यूडल उसके अंदर में होते थे, लेकिन उसकी ताकत को दूसरे छोटे फ्यूडल जो हैं वो भी चैलेंज करते थे। इसकी मिसाल हम इंग्लैंड के अंदर देखते हैं, क्योंकि दूसरी जो अहम मिसाल है जहाँ पर जमहूरियत का सफ़र यूरोप के अंदर शुरू हुआ वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अंदर मतलब के बादशाह थी, लेकिन बादशाह एक तरह से उसके पास इख्तियारात भी थे, लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो बड़े बाइख्तियार थे और अगर वो जमा हो जाते थे और उनकी अपनी फौजें भी मिल जाती थी तो वो बादशाह को शिकस्त दे सकते थे। लिहाजा हुआ ये कि वहाँ पर एक इदारा इन फ्यूडल लॉर्ड्स के और बादशाह के दरमियान बना जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। ये पार्लियामेंट का लफ्ज़ यानी लैटिन लफ्ज़ है, इसका ये कहते थे पार्लियामेंटेरियम। पार्लियामेंटेरियम का मतलब था बातचीत करना। ये पार्लियामेंट जो बनाई गई, इस पार्लियामेंट के मेंबर जो थे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे और एक तरफ बादशाह होता था, एक तरफ फ्यूडल लॉर्ड, और बादशाह को की ताकत को या इख्तियारात को चैलेंज करते थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ से बादशाह को हुआ वो ये था कि बादशाह को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, यानी उसको अगर जंग करनी है या कुछ और करना है, तो वो टैक्स लगाता था यार। लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स ने कहा कि टैक्स लगाने का इख्तियार जो है वो तुम्हें नहीं है। टैक्स लगाना अगर होगा तो उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। जब तक पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देगी उस वक्त तुम टैक्स नहीं लगा सकते। इसके ऊपर मतलब झगड़ा हुआ और 1215 के अंदर जो मैग्ना कार्टा का मतलब बिग चार्टर, वो मतलब कि पार्लियामेंट ने पास किया। उस वक्त वहाँ पर किंग जॉन बादशाह हुआ करता था, वो मजबूर हुआ कि उसको माने। उसके अंदर जो बात कही गई थी वो ये, एक तो टैक्स लगाने का इख्तियार जो है वो बादशाह को नहीं है, दूसरा ये है कि किसी को बगैर किसी यानी वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर उसका ट्रायल होगा तो उसके तो ज्यूरी उसमें बैठेगी और वो जजमेंट जो है वो देगी। देखिए बुनियादी चीज़ें जो थी मैग्ना कार्टा के अंदर हुई, जिसको कहते हैं कि जमहूरियत का पहला मतलब कि अहम चार्टर है। उसके बाद से इंग्लैंड के अंदर एक असर रही है पूरी तारीख के अंदर इंग्लिस्तान की, वो है पार्लियामेंट और बादशाह के दरमियान। और ये हमेशा से सवाल रहा है कि हु रूल्स द कंट्री, किंग और पार्लियामेंट। तो अब हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट जो है वो अपने इख्तियारात या अपने दायरों को बढ़ा रही है, अपने इख्तियारात को ले रही है, बादशाह के इख्तियार कम कर रही है।
اگر آپ انگلستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہاں پر سول وار بھی ہوتی ہے، جس میں کراؤن ویل جو ہے وہ چارلس کی غداری کا مقدمہ چلا کے اور اس کی گردن اڑا دیتا ہے اور ریپبلک قائم کرتا ہے، اور پہلی مرتبہ اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ انگلستان کا پہلا دستور جو ہے ریٹرن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنے، چونکہ ابھی تک انگلستان کا کوئی تحریری دستور نہیں ہے۔ کراؤن ویل کے زمانے میں ایک کوشش ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر بادشاہت آ گئی۔ دوسری جو ایک اہم تبدیلی آئی ہے انگلستان کے اندر وہ 1688 کے اندر آئی ہے۔ 1688 کا یہ جو زمانہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں گلوریس ریولوشن، یعنی شاندار انقلاب، کیونکہ اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں بادشاہ واپس جب آتا ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بل آف رائٹس۔ بل آف رائٹس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اپنے اختیارات کو بڑھا دیتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹیکس لگائے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ فوج رکھے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالتی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ بلاوجہ قید کر کے ان کا ٹرائل کرے، سزا دے۔ اس قسم کے بہت سارے اختیارات جو تھے پارلیمنٹ نے اپنے پاس لے لیے، لہٰذا اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے بل آف رائٹس کی یا 1688 کا جو ریولیوشن آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا کہ ہو شوڈ رول دا کنٹری تو اب یہ تھا کہ بہت کنگ اینڈ پارلیمنٹ بہت کہ دونوں کے اختیارات تقریباً برابر کے ہو گئے۔ لیکن پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ تاریخ پڑھیں انگلستان کی تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ برابر مضبوط ہوتی رہی ہے، اختیارات دیتی رہی ہے اور بادشاہ اسی طریقے سے کمزور ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ زیادہ اختیارات بادشاہ کے پاس وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ برائے نام رہ جاتا ہے، جو آج کی صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری پھر جو ایک اہم تبدیلی آئی ہندوستان کے بعد وہ ہے 1789 کا جو فرانسیسی انقلاب آیا ہے۔ یہ فرانسیسی انقلاب جو ہے یہ بھی مطلب کہ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن فرانسیسی انقلاب یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے بادشاہ کے نظام کو ختم کیا ہے، نہ صرف یہ ختم کیا بلکہ بادشاہ کو، اس کی کوئن کو اور بڑے بڑے عمرا کو وہ گیٹین ان کا ایک وہ ہوتا تھا یعنی جس کے ذریعے سے گردن اڑایا کرتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عمرا کی نس گردن کاٹی جاتی تھی تلوار کے ذریعے سے، عام لوگوں کو ہینگ کیا جاتا تھا، یعنی ان کو یعنی پھانسی پہ چڑھایا جاتا تھا، اور عورتوں کا مطلب گلا گھونٹ کے مارا جاتا تھا۔ یہ سزائیں تھیں، یعنی ان سزاؤں کے اندر بھی طبقاتی فرق موجود تھا کہ اس کو کون سی سزا جو ہے ملنی چاہیے۔ تو اس وقت ایک شخص تھا، اس نے ایک گیٹنگ کا یہ آدھا جو ہے دریافت کیا کہ اب اس کے بعد سے سب کو ایک ہی طرح سے موت کے گھاٹ اتارا جائے، ان کا سر کاٹا جائے۔ آپ نے فلموں کے اندر دیکھا ہوگا نا، پراسر پلیٹ ہے آ کے گرتا ہے۔ تو فرانسیسی ریولوشن کے اندر اس گیٹنگ نے نہ صرف بادشاہ کو، ملکہ کو، بڑے بڑے سرداروں کو، اور فوراً انقلاب کے بعد ہی 1789 کے اندر انہوں نے نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو قائم کیا۔ اس نیشنل اسمبلی کے ممبر جو تھے وہ مطلب کہ ریولوشنری یا انقلابی لوگ تھے، عوام، ابھی انتخابات نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے اندر عوامی نمائندے جو تھے وہ آئے، اور اس کے اندر پہلی مرتبہ ہوا یہ ہے کہ جب بحث مباحثے ہوتے تھے تو جو لوگ لیفٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ بڑے ریڈیکل لوگ تھے، جو رائٹ پہ بیٹھتے تھے وہ ریڈیکل نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ لیفٹ اور رائٹ کی جو ہمارے آج اصطلاح آئی ہے نا سیاست سے، یعنی سیاست کے اندر یہ بھی فرانسیسی ریولوشن کی ہے کہ لیفٹ جو ہیں وہ انقلابی اور ریڈیکل ہوتے ہیں، اور رائٹس جو ہیں وہ زیادہ روایت پسند ہوتے ہیں۔ تو نیشنل اسمبلی نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو انہوں نے، بلکہ جو اس کے اندر بہت سے عمرا ممبر اس کے تھے، انہوں نے والنٹری یا رضاکارانہ طور کے اوپر انہوں نے اپنی جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا، اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کرنا ایک بہت بڑی حوصلے کی بات تھی۔ تو اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر انہوں نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا جو کہلاتا ہے ڈکلیریشن رائٹس آف مین، اور اس ڈکلیریشن کے اندر بھی یعنی جیسا ان کے سلوگنس تھے کہ لبرٹی، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی، اور یہ تھا کہ سارے خطابات جو تھے عمرا کے، بادشاہوں کے، وہ ختم کر دیے گئے۔ اب ایک دوسرے کو ایڈریس کرتے تھے تو یور ایکسیلنسی یا ہائینس کے وہ سب ختم ہو گئے، بلکہ سٹیزن۔ آپ دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے اندر ایک زبردست خواہش ہے کہ اس کے اندر مساوات جو ہے وہ ہونی چاہیے، برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ تو جتنی انقلابی تحریکیں ہیں ان انقلابی تحریکوں کے اندر اس بات کا پر زور دیا گیا ہے کہ آپ یعنی
इक्वलिटी या मसावत कायम करें। तो जैसे उन्होंने सिटीजन हर एक को कह के मुखातिब होते थे, या जैसा आपको पता है रूसी इत्तलाब आए तो कॉमरेड कह के होते थे। और हमारे यहाँ भी बहुत सी जो रेडिकल जमातें हैं वो एक दूसरे को मतलब के ब्रदर या भाई कह के मुखातिब करते हैं ताकि वो तबकाती फ़र्क जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये राइट्स ऑफ मैन जो है एक बुनियादी डॉक्यूमेंट था। इसके ऊपर भी उस वक्त एक खातून थी जिन्होंने कहा कि आप राइट्स ऑफ मैन क्यों कहते हैं, राइट्स ऑफ वीमेन कहाँ है, वो भी होना चाहिए, औरतों को भी हो, क्योंकि अभी तक औरतों के हकूक़ के बारे के अंदर ये इनकलाबी भी तैयार नहीं थे। यानी औरतों को जब हकूक़ देने की बात आती थी तो बड़े से बड़ा इनकलाबी जो है वो मतलब के खामोश हो जाता था। तो फ्रांसीसी इनकलाब आया, इतना बड़ा इनकलाब था, लेकिन औरतों का भी मतलब के हकूक़ की बात थी तो वो नहीं किए गए। और जो इसके ऊपर ये नहीं था कि एहतजाज नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ औरतों ने इसके ऊपर एहतजाज किया कि राइट्स ऑफ वीमेन जो है, डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ वीमेन भी आए मैन के साथ साथ। तो फ्रांसीसी इनकलाब ने एक तरह से ये किया है कि बादशाह के निज़ाम का खात्मा करके रिपब्लिकन हुकूमत जो है वो कायम की, और इससे पूरा यूरोप जो है वो मुतासिर हुआ। और पूरे यूरोप के अंदर एक डर और खौफ पैदा हो जाता है कि अगर ये इनकलाब दूसरे मुल्कों में गया तो चूँकि वहाँ तो बादशाहतें थी, बादशाह के ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए इस इनकलाब को रोकने की मतलब की कोशिशें हुई हैं। मतलब कि इस इनकलाब के नतीजे के अंदर फ्रांस के ऊपर हमले भी किए गए, लेकिन हुआ ये कि पहली मरतबा उन्होंने ये किया है इनकलाबी हुकूमत ने कि उन्होंने अवामी फ़ौज को तैयार किया है। पहली मरतबा फ़ौज जो है उसके अंदर उसमें भी मतलब कि आम आदमियों को बराबर का दर्जा देके और उनको ट्रेन करके और उनको कौम परस्ती के तहत इनकलाब को बचाने के लिए जमा किया गया, और वो बहादुरी से लड़े और उन्होंने यूरोप की मुत्तहिदा फ़ौजों से मुकाबला किया। उसके बाद वहाँ तारीख बदलती है, नेपोलियन आ जाता है, लेकिन एक इनकलाब का जो रास्ता शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं होता है। वो इनकलाब का रास्ता जो है वो चलता है। उनके 1815 में रेवोल्यूशन आता है, 1830 के अंदर आता है, 1848 के अंदर आता है। यानी एक मरतबा जब इनकलाब आ जाता है, लोगों को बुनियादी हुकूक मिल जाते हैं, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो फिर रास्ता खुल जाता है। इसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर भी फ्रांसीसी इनकलाब से वहाँ की जमहूरियत भी मुतासिर हुई, और उन्होंने भी 1832 के अंदर वो कहते थे ग्रेट रिफॉर्म बिल, जिसमें वोट देने का हक जो है वो बढ़ाया, काफ़ी लोगों को वोट देने का हक जो है वो दिया। फिर 1862 के अंदर एक दूसरा रिफॉर्म बिल आता है जिसमें मज़ीद लोगों को वोट का हक मिला। तो यानी वोट का हक अचानक लोगों को नहीं मिला, लेकिन अभी तक यानी शायद जिसको कहते हैं ना बालिग राय दही, वो अभी तक नहीं थी, या औरतों को वोट देने का हक जो है वो अभी तक मतलब कि यूरोप के अंदर नहीं था। तो ये था कि यूरोप के अंदर ये जमहूरियत जो आई उसको इसीलिए कहते हैं बुर्जुआ मतलब की जमहूरियत। ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी के मुतवस्सित तबका जो है उसकी ये ख्वाहिश थी कि अब उसको हुकूक मिल गए तो बस अब यहीं तक रहने चाहिए, ये बात नीचे तक नहीं जानी चाहिए। ये हम जो इस्लाहात कर रहे हैं, इन इस्लाहात से हमें फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा हम इसको अपने तक रखें, इसको आगे की तरफ लेकर जाएं। दूसरी तरफ जो जमहूरियत का एक नई तश्कील हुई वो अमेरिका के अंदर हुई। अमेरिका में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ यानी बरतानिया के खिलाफ 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने जमा होकर आपस में मिलकर ये जंग लड़ी है, और जंग में कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने फिर अपने यहाँ मतलब एक जमहूरी रियासत कायम की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसकी भी बहुत मतलब की अहमियत जो है वो है। लेकिन उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की तरह से अपनी जमहूरियत को नहीं बनाया, बल्कि उसकी जगह उन्होंने सदर का अहदा जो है वो मुंतखब किया। और सदर जो है क्योंकि उस वक्त तक इंग्लैंड के अंदर बादशाह होता था, तो वो कम से कम बादशाह के मुकाबले के अंदर सदर को लाना चाहते थे कि उनका सदर भी बड़ा बाइख्तियार होता है। तो सदारती हुकूमत जो है वो अमेरिका के अंदर कायम हुई। सदर का इंतखाब जो है वो आम यानी वोटों से मतलब के होता है। उसके बाद सेनेट का और हाउस रिप्रेजेंटेटिव का, ये सेनेट के इदारा उन्होंने रोमन रिपब्लिक से लिया। जो सेनेट और हाउस रिप्रेजेंटेटिव या जिसको आप कहते हैं ऐवान नुमाइंदान, ये मिलकर कांग्रेस जो है वो बनती हैं। ये एक सदारती निज़ाम है। इंग्लैंड के निज़ाम को कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर पार्लिमानी सिस्टम। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए कि जहाँ पर पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वो बिल्डिंग वेस्ट मिनिस्टर कहलाती है। पार्लियामेंट सिस्टम में ये होता है कि इनमें इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म के पास होते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होता है, और उसके जितने वज़ीर होते हैं काबीना के वो भी मतलब कि पार्लियामेंट से मुंतखब होकर आते हैं। अमेरिका में सदर जो है वो किसी को भी वज़ीर या सेक्रेटरी जो है वो किसी भी प्राइवेट शख्स को भी बना सकता है, लेकिन
हिंदुस्तान की काबीना जो है वो मुंतखब काबीना होती है और लोगों के सामने जवाबदेह होती है। तो ये दो निज़ाम हुए, लेकिन इसके अंदर भी तब्दीलियाँ आती गई हैं। अब मसलन फ्रांस के अंदर सदारती निज़ाम है, लेकिन सदर की मुद्दत जो है उनके यहाँ 7 साल है। जर्मनी के अंदर सदारती निज़ाम नहीं है, उनके यहाँ वज़ीर आज़म को चांसलर कहते हैं, सदर उनके यहाँ बराए नाम होता है, चांसलर को ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत की शक्लें जो हैं वो यूरोप के मुल्कों के अंदर भी बदली हुई हैं। यूरोप के बहुत से मुल्क हैं जहाँ अभी भी बादशाह थे, लेकिन बादशाह बराए नाम हैं और बाकी अवामी इदारे हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, मुंतखब होते हैं, उनके ज़रिए से सारे मामला जो हैं होते होते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ हुआ ये है कि जब 47 में वो देखें औरतों को जो वोट का हक मिला है, ये पहली जंग के बाद मिला है। पहली जंग के बाद हुआ ये कि चूँकि पहली जंग के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मर्द जो हैं वो तो वहाँ को भी चले गए थे, जंग लड़ने चले गए थे, तो इस मरतबा तो उसकी वजह से औरतें जो हैं वो घरों से बाहर निकली और फैक्ट्रियों में उन्होंने काम करना शुरू किया और वो काम उन्होंने किए जिसके बारे में कहा जाता था कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस ज़माने में औरतों ने वो सारे काम किए। लिहाजा हुआ ये है कि जब जंग ख़त्म होती है तो औरतों को भी वोट का हक जो है वो मिलता है, बहुत बात के लिए। लेकिन हमारे ये हुआ 47 के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो यहाँ पर बालिग राय दही का निज़ाम हमें मिलता है, यानी यहाँ पर हर बालिग को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वोट का हक होता है। लेकिन अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो एक तो जमहूरियत तो थी, लेकिन दस्तूर हमारा 56 के अंदर बना है, इससे पहले दस्तूर नहीं था। इस दस्तूर के खैर मौजूदगी की वजह से ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के दो इदारे जो थे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए और दस्तूर हमारा 56 में बना, लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हो पाए थे कि यहाँ 58 के अंदर मार्शल लगा दिया गया। मार्शल लगाने की वजह से वो जमहूरी रिवायतें अगर शुरू भी होती तो जमहूरी रिवायतें जो है वो ख़त्म हो गई। मार्शल लग गया, अयूब खान सदर ने सलाती निज़ाम जो है जारी किया और उन्होंने अपनी पसंद की जमहूरियत की जो बुनियादी जमहूरियत कहलाती थी। बुनियादी जमहूरियत में तकरीबन 5000 नुमाइंदे मुंतखब होते थे, वही नुमाइंदे जो हैं वो सदर का इंतखाब करते थे। तो इसलिए अयूब खान जब इलेक्शन लड़े हैं 1964 के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फातिमा जिन्ना के मुकाबले के अंदर वो जीत गए। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब कि 56 के बाद जो अयूब खान ने भी दस्तूर बनाया था 62 का, लेकिन वो बुनियादी जमहूरियतों वाला और सदारती निज़ाम। जब अयूब खान का ख़त्म होता है 73 का दस्तूर बनता है तो इसके अंदर मतलब कि बालिग राय दही है, इलेक्शन मतलब कि होते हैं, इलेक्शन का सिस्टम है और एक जो मौजूदा ज़माने के दस्तूर में जो दफ़ात हैं, बुनियादी हकूक़ के दफ़ात, वो सारी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि अब तक हमारे यहाँ एक बड़ा मसला रहा है कि हमारे यहाँ कौन सा निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम हो, चूँकि जब चावल लोग आते हैं तो वो कुछ सदारती निज़ाम का इंतखाब कर देते हैं और पार्लिमानी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक तो ये बड़ा मसला रहा है कि कौन सा निज़ाम हमारे यहाँ होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। दूसरा बड़ा एक अहम मसला हमारे यहाँ जो है वो ये है कि चूँकि हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, इस वजह से जागीरदार तबका जो है अपने इलाकों के अंदर उसका असर रसूख है। इसी तरीके से जो ट्राइबल हमारे एरिया हैं उन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ट्राइबल लीडर्स में उनका असर रसूख है। तो इलेक्शन यहाँ जो भी होते हैं या तो उसमें ट्राइबल लीडर जीतते हैं या जागीरदार पसंदीदार जीतते हैं। रह जाता है सिर्फ शहरों का मसला कि शहरों के अंदर इनका असर चूँकि कम होता है तो सिर्फ शहरों के अंदर लोग जो है मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। ऐसी जमातें जो मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करती हैं वो शहरों से जीत सकते हैं, लेकिन बाकी हमारे यहाँ हमारी सियासी जमातें जो हैं वो भी सारे जागीरदारों के कब्जे के अंदर हैं। खुद उनके अपने इलेक्शन नहीं होते, अपने कारकुन जो हैं उनको मज़ारे समझते हैं, उससे ज़्यादा उनको कोई हक नहीं देते। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन यानी जब उम्मीदवारों का होता है तो ये पार्टियां लोगों से पैसे लेके उम्मीदवार नामजद करती हैं। आम आदमी के लिए कोई इस किस्म की का मौका नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। नतीजा उसका ये है कि हमारी पार्लियामेंट जब से जमहूरियत आई है, पार्लियामेंट निज़ाम आया है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जागीरदार जो हैं वो काबिज हैं या कबायली सरदार काबिज हैं। इसलिए आप देखें कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई तरक्की पसंद या रेडिकल इस्लाहात या कवानी जो है वो पास नहीं हो सके। न ज़मींदारी यहाँ से ख़त्म हुई है, न यहाँ पर लोगों को बुनियादी हकूक़ मिले हैं, न ही औरतों को मतलब कि उनके हकूक़ मिले हैं,
क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं ठेकेदार जमहूरियत है हमारी, अवामी जमहूरियत हमारी नहीं है। अब अवामी जमहूरियत कैसे आए, किस तरीके से लाई जाए, अब आपको आगे चल के जो लोग आएंगे वो मेरे ख्याल से कुछ सियासी जमातों का तजिया करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त की सियासी जमातें जितनी भी हैं उनमें से कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जो यहाँ पर अवामी जमहूरियत लेके आए। तो आखिर किस तरीके से अवामी जमहूरियत आएगी, क्या किस तरीके से तब्दीली आएगी, या हम मायूसी से दराज से होते रहेंगे कि कोई तब्दीली नहीं आएगी? ऐसा नहीं होगा। तब्दीली यकीनन आती है क्योंकि वक्त बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, रवाबित जो है वो बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर शऊर भी जो है वो बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल से अब आप नौजवानों का ये फ़र्ज़ है कि एक तो सबसे पहले अपने आप को यानी सियासी तौर पर बाशऊर बनाएं, आप अपने निज़ाम को समझें, अपनी सोसाइटी को समझें, अपने निज़ाम को और सोसाइटी को समझने के बाद आप यकीनन यानी खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि मतलब कि तब्दीली के लिए जद्दोजहद करना चाहिए। जद्दोजहद के बहुत तरीके होते हैं, जैसे आज आप जो यहाँ जमा हुए ये भी उसकी एक निशानी है, और यही चीज़ें आप लेके आगे चल सकते हैं। और आप जब तक जद्दोजहद नहीं करेंगे शायद उस वक्त तक मतलब कि तब्दीली का आना मुमकिन नहीं है। बहुत डॉक्टर साहब से या जवाद अहमद साहब से तो वो कर सकते हैं, लेकिन 1 by 1 जो है ताकि या कोई कंफ्यूजन रह गई है किसी के जेब में कोई इशू समझ नहीं आया तो वो जरूर सवाल कर बल्कि सवाल हर सूरत में करे, हर आदमी एक सवाल करे, सवाल के बगैर तो कोई फायदा जी। तो जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तो इन्होंने भी सदारती निज़ाम लेके आए, मगर उनके दौर में तो एक वज़ीर आज़म भी थे मोहम्मद खान जुनेजो, तो वो किस किस्म का निज़ाम था कि जिसमें वज़ीर आज़म भी था और ताकत जो है वो सदर के पास थी और पार्टीज जो है वो नॉन फंक्शनल थी तब करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ियाउल हक साहब ने भी एक तो पार्टी लेस जिसको कहते हैं वो इलेक्शन कराए ताकि किसी कोई पार्टी जो है वो सामने नहीं आ सके। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने जो पार्लियामेंट बनाई जिसको ब्रिटिश शूरा मतलब के वो कहते थे। अच्छा, अब था ये कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ जमहूरियत है, उन्होंने सारे इख्तियार तो उनके पास थे, उन्होंने मतलब पार्लियामानी सिस्टम बना के जुनेजो को वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन फिर आपको पता है ना कि जब जुनेजो ने अफगानिस्तान के सिलसिले के अंदर जन्मा में जाके माहिदा किया तो ज़ियाउल हक साहब ने फ़ौरन उनको हटा भी दिया और उसके बाद किसी किस्म का कोई एहतजाज भी नहीं हुआ। तो इख्तियारात उनके बाद दुनिया को दिखाने के लिए इस किस्म के इक़दाम हर आमिर ने किए। अयूब खान ने भी बुनियादी जमहूरियत का नाम लिया, इन्होंने भी मजलिस शूरा बनाई, इलेक्शन कराए, लेकिन देखा जाए तो इख्तियारात उन्हीं के पास थे। देखिए, बड़े लोग अच्छे लगने लगते अगर इतने ज़्यादा जो हालात ख़राब नहीं होते तो जाहिर है कि आप ये कहते कि भाई अयूब खान का ज़माना भी अच्छा नहीं था। बात इसमें यह है कि आप इस तरह से देखें कि अयूब खान ने एक जमहूरी रिवायात चलने वाली थी उनको रोका है। उन जमहूरी रिवायात को ख़त्म करने के बाद यहाँ आमरीत कायम की है, यहाँ पर मतलब कि पाबंदियाँ लोगों के ऊपर लगाई हैं, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। नतीजा उसका ये था कि जमहूरियत को सबसे पहले नुकसान जिसने पहुँचाया वो अयूब खान था, इसलिए हमारी तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम भी हुआ। आप इस उससे देखें कि ख़राबी की बुनियाद वहाँ से शुरू होती है जो आगे चल के बराबर ख़राब होती चलती है। अगर रही भगवान का सबसे बड़ा मसला भी है, अयूब खान के दौर में 25 पैसे की बात होती है, वो किसी भी चीज़ के 25 पैसे बढ़ाता है, एहतजाज होता है और वो अलग हो जाता है हुकूमत से। पर आज के दौर में पाकिस्तान में 83 शुगर मिल्स काम कर रहे हैं, 53 पार्लियामेंट्स में उसके मेंबर बैठे हैं जो ऑनर द शुगर मिल्स हैं। यहाँ पे शुगर मिल्स के ऊपर एक रूलिंग आती है कि आप 40 रुपये से ऊपर नहीं सेल करेंगे। यहाँ पे ना लॉ को कोई मानता है, ना यहाँ पे कोई शुगर मिल ऑनर मान रहा है किसी चीज़ को। प्रॉब्लम इसके वहाँ 25 पैसे की बात हो रही है, वो सीट छोड़ देता है। ऑल्दो के एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर तो लोगों के ढाई से उसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, आप इसको अंग्रेज़ों के ज़माने से आप अभी मतलब कि आज़ाद होकर यहाँ पर आए थे और अंग्रेज़ बहुत सी मतलब कि अच्छी रिवायात भी छोड़ के गए हैं। मैं खुद कॉलोनियलिज्म का मुखालिफ हूँ, लेकिन ये कि बहुत अपनी रिवायात भी छोड़ के गए हैं जिसमें उनका ख़ास तौर से बेवाकरेसी का निज़ाम और यानी जिसमें आवाम के लिए बहुत को इंसाफ मुहैया करना, ये सारी बातें थी। ये इब्तदाई ज़माना वो था कि जिस इब्तदाई ज़माने के अंदर ये कुछ रिवायात जो थी वो बाकी थी। और आपकी बात सही है कि उस वक्त जब शुगर का यानी बहरान हुआ है और लोगों ने एहतजाज किया है तो उसकी वजह से ये की हुकूमत जो है वो चली जाती है। लेकिन अब यह है कि आप ये सवाल कि ऐसा क्यों नहीं होता
अब इसकी वजह जो है वो ये है ना कि इस जमहूरियत के अंदर जिसको हम कहते हैं कि जागीरदाराना जमहूरियत, इसके अंदर सारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो सबके सब जागीरदार हैं। अच्छा, इन जागीरदारों को मुंतखब कौन करता है? देखें ना, इन जागीरदारों को मुंतखब भी तो आपसे लोग करते हैं ना। अच्छा, लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए कि लोगों के सामने मतलब वो ये समझते हैं कि जागीरदार उनकी सरपरस्ती करेगा, उनके मसाइल का हल करेगा या सरदार भी करेगा, इसलिए उसको वोट देते हैं। अब ये है कि जब तक सोसाइटी बदलेगी नहीं, सोसाइटी को असल में है बदलना, जब तक आप सोसाइटी को जब तक तालीम यहाँ पर नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर सियासी शऊर नहीं आएगा, उस वक्त तक जाहिर है कि ये सूरत हाल रहेगी, आप इससे नहीं निकल सकते। क्योंकि जो जमाली साहब वज़ीर आज़म हुए तो उन्होंने कह दिया था ना कि जागीरदारी को ख़त्म करने की अब बात कर कोई ना करे, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये एतमाद इसलिए उनके अंदर है कि सियासी ताकत उनके पास है। अब यह है कि कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो मुकम्मल तरीके से अवामी जमात हो। अगर कोई अवामी जमात हो, सियासी अवामी जमात, वो एहतजाज करे तो ये लोग उसके सामने नहीं ठहर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबको मिलकर आपको सबको जद्दोजहद करना है। डेरा मुराद जमाली सर, आज डेरा मुराद जमाली का सबसे बड़ा मसला वहाँ पे पानी का मसला है, और जो का जिसके सबसे जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है। मैक्सिमम 2 करोड़ और 5 करोड़ के इन बिटवीन पे वो लाई करती है। ऑल्दो के पानी की सिचुएशन आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए कोट करने लगा हूँ, अगर वहाँ पे कोई मौत भी हो जाए तो बगैर गुस्ल के भी उन्हें बार बार दफनाना पड़ जाए। अगर एक बंदा जो तो पानी नहीं अपनी आवाम को दे सकता, वो सिर्फ अपने आप को या अपनी जागीरदार निज़ाम को प्रॉन्ग करने के लिए क्या वहाँ पे वो एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करे? इन सेंस में हम किस तरह काम कर सकते हैं जहाँ पे आपका जो जागीरदार है वो इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि अगर नीचे वाली आवाम को अगर शऊर आ गया तो मैं कर जाऊँ? नहीं, बिल्कुल आप देखें वो 8 में तक के यानी सिंध के अंदर चले जाएँ, वहाँ ये जितने पीर हैं, पीर पनाड़ा हों या ये ताबुद मौला के ख़ानदान वाले हों या कोई भी हों, आप उनके वहाँ आदत देखिए तो यही आदत है। जैसे उनकी अपनी हवेलियाँ जो हैं वो तो उसमें सारी आसाइशें हैं, बाकी आवाम के पास कुछ नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन अब यह है कि तारीख के अंदर ये सूरत हाल रही है, लेकिन मतलब कि इस सूरत हाल को बदला गया है। अब इस सूरत हाल को कौन बदलता है? देखें, एक तो ये होता है कि किसी भी मुल्क का तालीम याफ्ता और दानिशवर तबका जो है वो आवाम के अंदर शऊर जो है पैदा करता है। अगर आवाम के अंदर शऊर हो तो देखें, शहरों के अंदर हमारे जितनी आबादी है, अगर ये जद्दोजहद करें तो हुकूमतों के तख्ते उलट सकते हैं। और ये हुकूमतों के तख्ते आपने देखा होगा उलटते हुए ईस्टर्न यूरोप के अंदर किस तरीके से वहाँ पर वेलवेट रेवोल्यूशन आया या रोज़ रेवोल्यूशन आया, ये सारे अवाम लेके आए थे। और ये अवाम जब निकल जाते हैं, शहरों के अवाम की बड़ी ताकत होती है, ये निकल आते हैं तो यानी इनकलाब आ जाते हैं, तब्दीली आ जाती है। पेरिस का इनकलाब जो था वो पेरिस के अंदर आया, देहातों के अंदर बाद में आया है। पहले पेरिस के अंदर आया है, वहाँ उसके असर के नतीजे में देहातों के अंदर आया है। तो ये है कि अवाम के अंदर अगर शऊर हो, हमारे अवाम में शहरों के अंदर जो रहते हैं, और इसके अंदर तालीम याफ्ता तबका और दानिशवर तबका, इन सब का बहुत हिस्सा है। अब बदकिस्मती ये है कि इनको हमारा तालीम याफ्ता तबका जो है वो भी जद्दोजहद के अंदर आगे नहीं है। हमारे दानिशवर जो हैं वो उन्होंने भी अपने आप को बेच रखा है। तो नतीजा उसका जो है वो ये है कि लोगों को शऊर देने के लिए हमारे पास ज़राए जो है बहुत कम है। मीडिया आपका जितना है, लेकिन ना जो जिसको हम कहते हैं ना चेंज के एजेंट्स, तब्दीली के एजेंट जो होते हैं वो मतलब कि तालिब इल्म होते हैं। और आपको पता है तालीमी इदारों की हमारी जो आदत हो गई है कि तालिब इल्म जो हैं वो चेंज के एजेंट जो है वो नहीं रहे। दानिश्वर होते हैं, दानिश्वर अपनी तहकीक के ज़रिए से, अपने इल्म के ज़रिए से, लेकिन ये लोग जो हैं अपने आप को उन्होंने बेच रखा है। सियासी पार्टियाँ होती हैं, उनका हशा आपको मालूम है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनको आप मतलब जानते हैं, मीडिया है, उसको आप देखें तो उसका मतलब कि क्या रोल है। अब यह है कि ये सारी चीज़ें तो हैं कि जो निज़ाम है उस निज़ाम को बाकी रखने में जिनको इंटरेस्ट है वो किसको रखना चाहेंगे। अब यह जो लोग इसको नहीं रखना चाहते उनके लिए जद्दोजहद है, उनके लिए मुश्किलात बहुत हैं। लेकिन जमहूरियत का बुनियादी मकसद जो है वो ये है, जिसको हम कहते हैं मैं हर आदमी कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए। इकबाल ने ये बात कही है कि बहुत से लोग जो थे उनके अपने ज़माने में यूरोप के अंदर वो जमहूरियत से खौफज़दा थे, लेकिन उमरा का तबका जो है, रात याफ्ता तबका जो है वो हमेशा खौफज़दा होता है।
اور بات کرتے ہیں وہ کہ عوام جو ہیں وہ مطلب اس قابل نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، جاہل ہیں، لہٰذا ان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں تک سیاسی شعور کی بات ہے، میرا خیال سے پاکستان کے عوام کے اندر سیاسی شعور تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ عوام کو کس طریقے سے ناروں کے اندر یا کسی شہر کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، تو یہ تو ہر جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. ہر جمہوریت، جیسا میں نے کہا یونان کے اندر بھی جو تھے وہاں پر یعنی ڈیموکراٹس جو تھے موجود تھے کہ جو اپنی لفاظی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کر دیتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جمہوریت کے راستے کو چھوڑ دیں. اگر عوام میں شعور آتا ہے تو وہ ان ڈیموکراٹ کو بھی سمجھ جاتے ہیں. جیسے آج آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اب تقریریں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بات سب عوام کی کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عوام کے اندر اس صورتحال کے اندر دیکھیں شعور آ رہا ہے، وقت لگے گا لیکن میرا خیال سے تبدیلی ضرور آئے گی. جو کہ خرابی ہے ہمارے نظام میں، تو کیا ایسا ہے کہ اس نظام میں کچھ اصلاحات لگا کے اس کو آگے چلایا جائے اور آگے جا کے کنفرم ہے کہ یہ پھر خراب ہو جائے گا؟ نہیں، کیا اس نظام کو ہی تبدیل کیا جائے، چاہے عمران آ جائے؟ ہم بتوں کو ہی مطلب تبدیل کر کے ایک اور رکھتے جا رہے ہیں. کیا اصلاحات ہی مطلب ہمارے لیے بہتر رہیں گی، اس نظام کی بالکل ہی تبدیلی بہتر رہے گی؟ اچھا دیکھیں کیسے ہوتا ہے، یعنی جو الیکشن میں ہار جاتا ہے وہ اختیار چھوڑ دیتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ اختیار میں آ جاتا ہے. اب یہ کہ اب نئے الیکشن کے اندر کون اختیار میں آتا ہے اور اختیار میں آنے کے بعد وہ معاشرے کو سنبھالنے کے لیے یا سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اصلاحات کرتا ہے، یہ آنے والی پارٹی کے اوپر ہے. اگر آنے والے بھی اسی نظام کو اور اسی سسٹم کو جاری رکھیں گے، کسی قسم کی اصلاح نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بدنام ہوں گے، اسی طریقے سے ان پہ بھی الزامات جو ہے وہ بنیں گے. کیا آپ اس عام کی رائے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صرف 5 منٹ کی رائے ہے، مطلب میں ووٹ لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. 5 سال تک وہ دیمک کی طرح مجھے چاٹیں گے چاہے جو بھی ہو. کیا ڈیموکریسی صرف کوئی 5 منٹ کے لیے میں الیکٹ کر سکتا ہوں اس کو؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے نمائندے جن کو آپ منتخب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. اچھا آپ یہاں پر چونکہ جاگیردار ہیں، عمرا ہیں، وہ عوام کے سامنے نہیں آتے، تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے. ان کا گھیراؤ کریں، پہلے کہ ان کو گریبان سے پکڑیں کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ ہماری بات پارلیمنٹ تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں یا ہمارے مسائل کو کیوں حل نہیں کر رہے ہیں. لیکن سر ان تک ایکسیسیبلٹی ہے نہیں تو کیسے پکڑیں ان کو جا کے؟ نہیں مطلب کہ دیکھیں لوگ جمع اگر ہو جائیں تو یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ جب آپ دیکھیں جمہوریت کے اندر ایک یہ طریقے بھی ہیں. جمہوریت کے اندر مثلاً گھیراؤ کا طریقہ ہے، جمہوریت کے اندر احتجاج کرنے کا طریقہ ہے، جمہوریت کے اندر آپ اخبارات کے اندر لکھ سکتے ہیں، دستخطی مہم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، پروٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہت سے راستے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ابھی تک ان سارے راستوں کو اختیار نہیں کیا ہے. اچھا مجھے تھوڑا ایڈ کرنا ہے یہاں. سب سے اچھے جو سوال ہوئے نا ابھی تک جو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک انہوں نے کیا ہے، آپ نے کیا دلاور صاحب، اور آپ نے کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا جاوید. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھ کے سوال کریں. یہ نہ سمجھیں آپ یہ جو سسٹم کی باتیں کر رہے ہیں نا، سسٹم کے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ بہت پرانے سوال ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے عجیب سوال ہوتے ہیں کہ یہ ایوب خان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. یہ جو ہے نا یہ بنیادی سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے، یہ کیا کچھ کیا دے سکتا ہے آپ کو. یہ جو چل رہا ہے ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے یہ کیا دے سکتا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ووٹ دے کے آپ بیٹھ جائیں گھر میں تو اس کے بعد اگر جمع ہی ہونا ہے لوگوں نے، آخر کا لوگوں نے دوبارہ جمع ہونا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے، تو پہلے کیوں نہیں جمع ہو جاتے اور ووٹ کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرا سوال ہے صرف چھین کے ہی حق میں، مطلب ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ عوام کچھ کر سکتی ہے. تو کیا چھیننے کا طریقہ؟ ایک سرمایہ داری نظام کی جہاں بھی میں دیکھتا ہوں وہاں پر مجھے ایک سرمایہ دار ملتا ہے، چاہے وہ مطلب ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے، وہ بھی وہی بیٹھا ہے، اس کی ساری پالیسیاں اسی کی چل رہی ہیں. یہاں پر سرمایہ داری مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایک چلی گئی ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس کو، اور ہم سوچتے بھی اسی اینگل سے ہیں. اس کی اپنی کچھ مطلب ہے کہ وجوہات بھی ہیں، اور میرے خیال میں ان کی ان پالیسیوں سے میرے خیال میں ان کو کبھی بھی ہم اس طرح ووٹ سے کبھی کس کو الیکٹ کروں، کس کو، عمران خان کو کس کو میں الیکٹ کروں، مطلب کوئی بھی نہیں ہے.
छीन के ही मिलेगा। मेरा हक है तो मुझे इमरान नहीं दे सकता, मैं खुद लूँगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ तो आप देना आपकी तालबेल में आपको पता है कि तालिब यूनियंस जो है वो बैन कर रखी हैं, वहीं इलेक्शंस नहीं होते, तो पहले इत्तला वहाँ से करनी चाहिए कि तालीमी इदारों के अंदर यूनियंस होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि वहीं से तालिबों को एक तरबियत जो है वो मिलती है। अच्छा, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो एक तरह से कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वक्त में से हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम उनको बना सकते हैं या उनको हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जहाँ पर बहस मुबाहिसे होते हैं, जहाँ सेमिनार्स हैं, जहाँ पर लेक्चर्स हो रहे हैं, सिम्पोजियम्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और वहाँ पर नए ख्यालात जो हैं वो निकलते हैं। चूँकि नए ख्यालात जो हैं ज़ाहिर है कि इन्हीं इदारों से में पैदा होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे तालीम इदारे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ बिल्कुल यानी महज डिग्री देने का एक ज़रिया रह गई हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग तालिब इल्म हैं, यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि अपने तालीमी माहौल जो है, तालीमी इदारे जो हैं, उनके अंदर एक जमहूरी फ़िज़ा जो है आनी चाहिए, आज़ादी राय आनी चाहिए, बहस मुबाहिसे जो हैं वो होने चाहिए, तकारीर होनी चाहिए। ये बहुत हद तक तब्दीली का एक ज़रिया बनती है। सर मेरा सवाल जो साहब थिंक देना अच्छे, तो वो सोशल चेंज के लिए बड़े शानदार सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं किसी ऐसे सॉन्ग के ज़रिए कुछ ला रहे जिससे नौजवान मोटिवेट भी हों, और वो एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है सारे कंट्री वाइड मैसेज डिलीवर करने का। ऑन टेलीविजन किसका होता है? नहीं जैसे वो कर रहे हैं तो वैसे आप सिंपल सवाल है यार, मतलब अगर सॉन्ग लाया जाता कहाँ पे देखेंगे आप उसको? टेलीविजन। और टेलीविजन किसका है? आवाम का। अच्छा, टेलीविजन ऐसे कर लेते हैं, कितने टेलीविजन है पाकिस्तान में? चैनल बहुत ज़्यादा चैनल आई थिंक 30-40 तो होंगे एटलीस्ट। 30-40 होंगे। तो स्टेट टेलीविजन कितने हैं? 2-3 एक पीटीवी है, एक पीटीवी स्पोर्ट्स है, पीटीवी नेशनल है, असल में तो पीटीवी है, ठीक है एक। अच्छा, टेरेस्ट्रियल चैनल पता है आपको क्या होता है? पीटीवी टेरेस्ट्रियल चैनल किसको कहते हैं? पाकिस्तान में जो एंटीना के जरिए टेलीविजन देखा जा सकता है, इसके लिए केबल की जरूरत नहीं है। केबल तो आप इसे देख सकते हैं ना कि अगर आपके मोहल्ले में केबल नेटवर्क का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, तो बहुत सारी केबल्स हैं, नाम मैं लेना चाहता हूँ, तो बहुत सारी केबल्स हैं मुख्तलिफ नामों से काम करेंगे, उनका एक नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ, वो आपको आगे केबल पहुँचा रहा है। लेकिन एंटीना जो होता है वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, आप लगाते हैं, वो कैच करता है, तो एंटीना केबल को कैच नहीं करता। वो जिस टेलीविजन को कैच करता है वो पीटीवी है, या हर मुल्क के अंदर एक स्टेट टेलीविजन होता है जो कि इसकी एक्सेस जो है उसके ऊपर सब लोगों की होती है, तकरीबन सब लोगों की होती है। पाकिस्तान में कोई 70 से 80% के दरम्यान में एक्सेस है, 65 से 70 कहते हैं लोग, लेकिन मेरा ख्याल है कभी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये तो हो गया एक स्टेट टेलीविजन, और वैसे चैनल कितने हैं जो प्राइवेट जिनको हम कहते हैं? एटलीस्ट 30-40 है। आपको पता है कि जो गाना या कोई ड्रामा या कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म या न्यूज़ शोज, जितने न्यूज़ टॉक शोज हैं, ये सब जो चलते हैं टेलीविजन पे, ये किस तरह चलते हैं? फर्ज करें हमने यही एक शो बना लिया, ये कैसे चलेगा किसी चीज टीवी पे? आप मुझे बताएं, आपका क्या ख्याल है? इस तरह चलेगा? किसी चैनल पे चलाना है ना आपने इसको, इस तरह चलेगा? वो तो चलेगा नहीं उसको। आजकल के जमाने में देखा जाए तो रिश्वत से चलेगा जी, जो आजकल का जमाना चल रहा है उसे देखा जाए तो रिश्वत से चलेगा। रिश्वत तो एक वन ऑफ द थिंग्स हो सकती है, लेकिन तरीका क्या है? तरीका ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने सवाल पूछा है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सवाल के अंदर बहुत सारे जवाब आते हैं एक्चुअली, मैं इसलिए चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा और खोल दिया जाए। जो गाना होता है ना, या ड्रामा होता है या फिल्म होती है, जब वो किसी चैनल पे चलती है तो वो उस चैनल को उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है चलाने के लिए। तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था आपके साथ आज डिस्कशन, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हर चीज पे क्या लगता है, पैसा लगता है। तो
आखिरकार बात हर चीज कहाँ पे खत्म होती है? पैसे पे। तो जो गाने आप देखते हैं ना, जिन जिन लोगों में भी देखते हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, या तो जिस चैनल पे वो चलाते हैं उस चैनल का अपना कोई इंटरेस्ट होता है तो वो गाना चलता है, वो उसको मुफ्त चला देते हैं, या वो किसी स्पॉन्सर के जरिए चलता है जो कि उस चैनल के ऊपर वो जो टाइम होता है वो खरीदता है। 1 मिनट के इतने पैसे, 2 मिनट के इतने पैसे, 4 मिनट के इतने पैसे। जितनी ज्यादा आपके गाने के अंदर सख्त बात होगी उतना ही वो ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा कैसे चलेगा? लोग लाइक करेंगे। नहीं, पैसा लगना है ना आखिरकार। तो पैसा जो है जब लगना है, या तो चैनल का या स्पॉन्सर का, और आप उसमें बात ये कर रहे हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, भाई हमारे राइट है हर चीज का, तो आपको क्यों कुछ चलाने देगा? वो तो मसला पड़ जाएगा, एक इंतशार फैल जाएगा। ऐसा गाना चलेगा तो लोग जो है वो तो सड़कों पे आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो ऐसा गाना तो मुश्किल चलेगा ना। तो होता ये है कि अगर इस सिस्टम में, जहाँ पे सरमायादाराना सिस्टम है, हर चीज जो है उसके ऊपर, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जिसपे से आपने तजवीज करनी है अपने आइडिया की, वो किसी आदमी के पास होता है या किसी अदारे के पास होता है, और उस अदारे के अपने इंटरेस्ट होते हैं, सरमायादाराना इंटरेस्ट। अगर उनको आपका गाना समझ आता है जिसके जरिए उनके चैनल पे इन द लॉन्ग रन ज्यादा पैसा आएगा, तो वो उसको चलाएंगे। और या मुल्क के अंदर ऐसा मामला नहीं पैदा होगा कि उनके इश्तहारात रुक जाए, तो वो चलाएंगे। अगर वो नहीं लगेगा उनको ऐसा, उनको लगेगा कि इससे हमारे इश्तहार भी रुक जाएंगे, हमारा आमदनी भी रुक जाएगी, और इससे मुआशरे में भी इंतशार फैलेगा, वो इंतशार जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो गाना नहीं चलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी बनाते हैं ना, तो आपको इस सिस्टम के अंदर, जहाँ पे सरमायादाराना सिस्टम के अंदर, जहाँ पे तमाम चैनल, तमाम अखबार, तमाम तरवीजी इदारे जो है लोगों के पास हैं, तो आपको उनके साथ किसी न किसी तरीके से कोई कोऑर्डिनेट करके, कॉम्प्रोमाइज करके आपको वो चीज़ चलानी पड़ती है। तो इसलिए जो मैं गाने बनाता हूँ वो कोई चलाएगा तो उसके लिए मसला ही पैदा होगा। तो बना तो मैं रहा हूँ, उसके लिए हम कुछ देखेंगे हम किस तरह उसको मीडिया निकालते हैं। टोटली फ्री नाउअडेज। मीडिया जो है वो इतना क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट पे, टॉक शोज में, तो उससे इम्पैक्ट तो ये मिलता है कि मीडिया काफी फ्री है। वो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, और ये तो पता नहीं इससे क्या किसी को रोटी मिलती है, वही बात आ गई, कैसे रोटी मिलती है किसी को, क्या इससे इसको दवाई मिलती है, और क्या मिलने का इम्कान भी है, अगर ये हल भी हो जाएगा तो क्या इम्कान है कि हल हो गया तो अब दवाई मिलना शुरू हो जाएगी। इससे मतलब ऐसे इश्यूज की बात नहीं हो रही चैनल से, और अदर इश्यूज की बात जो कोई करेगा और ज्यादा सख्त तरीके से करेगा तो शायद उसको दोबारा चैनल पे जगह नहीं मिलेगी, मुश्किल नहीं मिलेगी। तो असल इश्यूज जो है वो इंसानों के वही हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तालीम है, सेहत है, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इज्जत, बराबरी की इज्जत, बराबरी हर हवाले से बराबरी जो है वो असल इशू इंसान का। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शऊर के मुख्तलिफ जो है वो सतह हैं, दर्जे हैं, और वो तबकात के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि हम थोड़ा सा खुल के सोचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब को इसीलिए बुलाया है कि डॉक्टर साहब ने आपसे जो गुफ्तगू की है, मैंने से बड़ा ज़्यादा सीखा है कि डेमोक्रेसी का जो इन्होंने पूरा सफ़र बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको हमने जोड़ना कहाँ पे है सबको। मैं ऐसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर दोबारा कभी आपका आने का दिल करे यहाँ पे, क्योंकि हम तो इसको गेज इस तरह करेंगे कि आप लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हाँ, अगर आप आएंगे तो मैं एक बात आपको यकीन दिलाता हूँ कि आहिस्ता 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 हम सारे सफर इकट्ठे करेंगे। ना मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ना आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, हम सब जो है सीख रहे होते हैं जिंदगी में। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह जरूर पहुंचेंगे जहाँ पे आप सब लोग इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, और तबकात के जो है ना चक्कर से निकल सकेंगे। कोई गरीब आदमी कम समझता है या अमीर आदमी ज़्यादा समझता है, इसमें से भी निकल जाएंगे। नॉलेज जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है। तो ये वाली नॉलेज जो हम ले रहे हैं वो सब आखिर का ट्रांसलेट एक जगह ही होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ
کہ انسانوں کو سب کچھ ملنا چاہیے, ہر انسان کو ہر چیز ملنی چاہیے, نہیں تو تمام پالیٹکس بھی فضول ہے, تمام سوسائٹی بھی فضول ہے, سماج بھی فضول ہے, معاشرہ بھی فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ تمام انسانوں کو سب کچھ نہیں دے سکتا جو کہ زمین میں پیدا ہوتا ہے اور زمین اس دنیا میں بنتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ بنتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس وقت دنیا میں, جتنا کچھ پیدا کیا جا سکتا ہے, جتنا کچھ بنایا جا سکتا ہے, وہ انسانوں کی نیڈ سے بہت زیادہ ہے. تو پھر کیوں نہیں پہنچ رہا ان تک؟ یہ صرف نظام کا معاملہ ہے. نظام کے بارے میں ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے تو ہم بات دینے کے لیے بیٹھے ہیں, تو نظام کے بارے میں ہم بات کریں گے آہستہ آہستہ. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے, یہ آپ سمجھیں یہ پہلی کلاس کو پڑھا رہے تھے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آگے جو باتیں کرنی ہیں وہ کبھی ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے تو وہ زیادہ بڑی باتیں ہوں گی. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ, میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں اگر آئندہ تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ میں تو اگر آپ آئیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ پہلا جو ہمارا یہ جو لیکچر تھا ڈاکٹر صاحب کا, یہ ہمارے لیے کامیاب ہے. بہت مہربانی آپ سب لوگوں کے آنے کی. اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی اور سوال کرنا چاہیے تو تھینک یو. ہم جو دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کانشیس مطلب ہے کہ یس ڈاکٹر صاحب چینج کر سکتے ہیں پاکستان کو, جواد احمد چینج کر سکتے ہیں پاکستان کو, عمران خان چینج کر سکتے ہیں. ایک بندہ کیسے چینج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. عوام یہ کیوں نہیں سوچتی؟ لیکن پہلے کہا اوباما کو یس یو کین چینج, آج وہ کہتے ہیں یس وی کین چینج. تو یہ اب کب دیکھتے ہیں کہ عوام کیوں یہ نہیں سوچ رہی کہ ہم چینج کر سکتا ہوں, میں چینج کر سکتا ہوں, یہ چینج کر سکتے ہیں, ہم سارے چینج کر سکتے ہیں. ایک بندہ کبھی چینج نہیں کر سکتا. ایک بندے کو بوسٹ اپ کر کے کیا کر لیں گے؟ مطلب ایک بندہ ہی مطلب سب کو روٹی دیتا پھرے گا. بیٹا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چینج ہم سب لا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سب انڈیویجولی ایفرٹ کرنے لگ جائیں گے تو شاید کچھ رزلٹ نہیں ہے. سب ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ایک پرسن کو سامنے لے کے چلنے کا مقصد ہوتا ہے, جیسے قائد اعظم تھے, ہم پرانے اس پہ چلے جاتے ہیں. قائد اعظم کو لے کے سب لوگ چلے گئے, قائد اعظم ملک بنا کے دیں گے. ہم ابھی کہتے ہیں قائد اعظم نے ملک بنا دیا. He was not the only person. ان کے پیچھے ایک تحریک سپورٹ تو کر سکتے ہیں نا, جیسے عمران خان کو اگر ہم ینگ جنریشن جیسے سپورٹ کر رہی ہے, کیا وہ چینج لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جاگیردار نظام ختم کر دوں گا, میں یہ تھانہ کلچر ختم کر دوں گا. تو بالکل کوشچن ایسے ہی ہے کہ کیا وہ چینج لا بھی سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو بالکل ووٹ کے ذریعے سپورٹ کریں تو ہر کسی کی زبان پہ میرے خیال میں یہی عمران خان کا ہی نعرہ ہے. تو کیا مطلب وہ ہمیں کوئی سر سبز باغ دکھا سکتا ہے فیوچر میں جو کہ ہماری نیڈ ہے؟ اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں ایک بات میں تھوڑا سا میں کہ ہمیں حکمران کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, ہم کیوں سوچتے ہیں ہمیں ایک حکمران کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات اس میں یہ ہے, آپ لوگوں نے جو یہ سوال کیا ہے نا, اس کا تعلق تاریخ سے بہت اہم ہے. کیونکہ تاریخ کے اندر ایک یہ بڑا سوال ہے کہ تاریخ کون بناتا ہے, کیا عظیم لوگ بناتے ہیں یا مطلب کہ عام لوگ بناتے ہیں. تو ہمارے تاریخ میں چونکہ ہم جس طریقے سے ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم نے پورا کر دیا, باقی سارے لوگ تو سو رہے تھے کہ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو یہ بالکل یعنی تاریخ کو شخصیتوں کے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ ان کے اوپر انحصار کریں گے, بھروسہ کریں گے, آپ کے اندر کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں گے کوئی آئے گا اور آنے کے بعد آپ کو اس عذاب سے نجات دلائے گا. لیکن اب تاریخ کو جس طریقے سے لکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ افراد یا عظیم لوگ نہیں بناتے ہیں, بلکہ تاریخ بنانے والے عام لوگ ہیں. ان کے کنٹریبیوشن کو یا ان کا جو عمل ہے اس کو آپ واضح لکھ رہے ہیں. تو تاریخ بھی بدل گئی ہے, بالکل تاریخ کا یعنی جو انداز تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو اس لیے جب تک ہم تاریخ کو بھی صحیح تناظر کے اندر نہیں دیکھیں گے نا, ہم اس پہ رہیں گے کہ کوئی مہدی آئیں گے, کوئی مسیح آئیں گے, وہ آ کے بھائی کوئی نہیں آئے گا, آپ کو خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. یہ اعتماد جب تک نہیں ہوگا سوسائٹیاں جو ہیں وہ نہیں بنتی. مڈ ٹرم الیکشن از اے پارٹ آف ڈیموکریسی اور ناٹ؟ مڈ ٹرم الیکشن بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور اس کا انحصار جو ہے وہ رولنگ پارٹی کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں اور ضرورت ہے تو وہ مڈ ٹرم الیکشن کرا دیتے ہیں. یہ بھی جمہوریت کا ایک حصہ ہے. تعلیمی اداروں کے اندر اپنی حیثیت کو تسلیم کرانا چاہیے. یعنی مجھے یاد یعنی پہلے جیسے کہ یونینس ہوتی تھیں, آل پاکستان مباحثے ہوا کرتے تھے, سیمینارس ہوتے تھے, تو یونیورسٹیاں جو ہیں کلچرل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے.
अब आप लोग आज यहाँ पर जमा गए हैं वो इसीलिए तो गए ना कि आपको ये सब बातें यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं मिलती हैं। अब आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर वो नहीं पढ़ाया जाता जो कि आपको पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि एक इस किस्म का फॉरम बना है कि यहाँ आपको उस किस्म के लेक्चर दिए जाएँ जो आपको अपनी यूनिवर्सिटियों में या तालीमी इदारों के अंदर आपको नहीं दिए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा कदम है, और अगर ये इस किस्म के इक़दाम अगर उठाए जाते रहें और सतहों के ऊपर तो तब्दीलियाँ छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही तब्दीलियाँ लेकर आती हैं। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मेरी किताबें भी पढ़ी, किसी ने नहीं। अच्छा कोई ना, मैं अखबार में लिखता हूँ, मैं कोई किसी ने अखबार में कोई कॉलम पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा है, बुक्स भी पढ़ी है और कॉलम भी पढ़ रखी है। अच्छा जैसे अभी जवाब ने बात कही, कुछ ऐसा हुआ कि PTV की तरफ से मुझे एक ऑफर हुआ कि आप हमारा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो वहाँ मैंने एक प्रोग्राम किया था तारीख और आज की दुनिया। अच्छा इस प्रोग्राम के अंदर हमने यानी कल्चर के ऊपर, तहजीब के ऊपर, जमहूरियत, आमलियत, फौज, जासूसी इदारे, यानी तमाम इनकलाब, इन तमाम के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल से कोई 30 के करीब जो हैं वो फिर दोस्तों ने यूट्यूब के ऊपर भी डाल रखे। अगर आपको मौका मिले तो वो देखें, और मेरे पास उसकी वो CD भी हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी हो तो आप लोग देखें, उस पर बहस रखें, फिर बातचीत करें, चूँकि वो उसका मकसद ये था कि नौजवानों को बुनियादी चीज़ें जो है वो बता दी जाए। वो अगर मिल जाए हमें तो हम नेक्स्ट टाइम उसको कॉपी करवा के लोगों को बांध देंगे। आप ले लीजिएगा फारिग साहब। हाँ वो मेरे पास है, अगर आप उसको देख के कॉपियाँ बना लें तो हैं, यूट्यूब पर भी हैं। तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो PTV को भी ज़्यादा अरसे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें बंद कर दिया। हाँ तो लेकिन बहरहाल एक कोशिश थी कि ये कि थोड़ा सा आप अल्टरनेटिव चीज़ों को देखिए। जो आपका निसाब है ना उस हिसाब से अलग हट के अल्टरनेटिव निसाब, मेरे ख्याल से ये जो तालीमी एजुकेशन या पॉलिटिकल एजुकेशन का जो निसाब है, जो मुझसे थोड़ी बात भी हो रही थी, एक अल्टरनेटिव निसाब है। इसमें आप आएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा मालूमात भी होंगी, ज़्यादा शोर होगा, क्योंकि जो हमारा इस वक्त का निसाब है उसके अंदर कोई जान नहीं है, तो आपको कोई ज़्यादा नहीं सिखाते। हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी अवाम के साथ गोरों से भी बदतर सलूक करते थे, अपने गोरों से अच्छा सलूक करते थे। तो इधर क्या हमारे जो ज़हन है उस तरह के पुख्ता हो चुके हैं कि बादशाह को ही हम सारा कुछ समझते हैं। तो इधर डेमोक्रेसी क्या कामयाब हो सकती है, जो हमारे ज़हन बन चुके हैं उस तरह के बादशाह ने थी। तो हमने देखा कि ज़ाहिर बादशाह और उमरा और फौज ये मिलकर हुकूमत किया करते थे। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए, कॉलोनियलिज्म आ गया, उनके अपने अज़ाइम होते थे। अब आज़ादी के बाद मतलब कि कम अज़ कम यानी हमारे यहाँ जमहूरियत पूरी तरीके से तो नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से भी जमहूरियत आई है उसमें हमें कुछ ना कुछ मौक़े जो हैं वो ज़रूर मिले हैं। उनसे फ़ायदा उठाते हुए और ज़्यादा अपने इख्तियारात, अपने हक़ूक़ को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े तो आपने डेमोक्रेसी भी हमें बताया। एट दी एंड आप क्या कंक्लूड करते हैं कि मतलब जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको कौन सा निज़ाम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वो ह्यूमन नीड्स को मतलब वो पूरा कर सकते हैं? बुनियादी चीज़ों का ताल्लुक जो है सिर्फ सियासी निज़ाम से ही नहीं होता है, बल्कि बुनियादी चीज़ों का ताल्लुक, जैसे आपने कहा ह्यूमन नीड्स का ताल्लुक, इसका ताल्लुक यानी एक सोशल मतलब के रिफॉर्म से भी होता है। जब सियासी निज़ाम आता है तो सियासी निज़ाम फिर कल्चरल तब्दीलियाँ भी लेके आता है, समाजी तब्दीलियाँ भी लेके आता है, उसकी वजह से लोगों की नफ्सियात जो है वो भी बदलती है। तो यानी एक पूरी तब्दीली इस तरह से आती है। तो ह्यूमन नीड्स जब आती हैं, जब पूरी होती हैं, जबकि सोसाइटी के अंदर पूरी आज़ादी हो बात करने की, बात कहने की, काम करने की, और एक फ़र्द को अपनी शख्सियत को बढ़ाने की, अपनी शख्सियत को तश्कील करने की, और उसमें एक यानी इनफरादी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना इंतखाब खुद कर सके कि मुझे क्या करना है। ये चीज़ें आती हैं ज़ाहिर है कि खुली फ़िज़ा के अंदर। तो हम समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है अपनी ख़राबियों के बावजूद कि जिसमें यानी इस किस्म की आपको स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है, जहाँ यानी माशरा जो है दूसरे पहलुओं को भी आगे बढ़ा सकता है। जबकि हम ये स्टार्ट यूके से हुई है, और यूके में जो है 2 पार्टी सिस्टम है, देयरफॉर वहाँ पे एक पार्टी अपोजिशन में रहती है, एक गवर्नमेंट में रहती है, और वो गवर्नमेंट को गिरने का कोई खतरा नहीं होता।
جبکہ ہمارے یہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہے, یہاں پہ ANP, MQM اور اتنی زیادہ پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں, کولیشن گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سب سے بڑا پرابلم یہی رہتا ہے کہ کہیں ان کی گورنمنٹ گر نہ جائے. کبھی وہ MQM کو مناتے ہیں, کبھی ANP کو مناتے ہیں, اور اس کے تھرو آئی تھنک پروگریس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی. سو واٹ ڈو یو تھنک وچ سسٹم از بیٹر فار کنٹری, ٹو پارٹی سسٹم اور ملٹی پارٹی سسٹم؟ نہیں ہے, انڈیا کے اندر اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں, بلکہ اس وقت بھی ان کے جو لبرل پارٹی ہے وہ تیسری پارٹی ہے جسے مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے کنزرویٹیوز نے. اس کے علاوہ اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں, مطلب کہ وہاں کمیونسٹ پارٹی بھی ہے, وہاں ٹرسٹسٹائٹس بھی ہیں, وہاں پر اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں, تو بہت ساری پارٹیاں ہیں. بات یہ ہے کہ دو پارٹیاں ان کے یہاں طاقتور ہیں, جیسے امریکہ کے اندر بھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, لیکن اور امریکہ میں بھی بہت سیاسی پارٹیاں ہیں جو الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہوتی. جرمنی کے اندر بہت پارٹیاں ہیں, ایک ہی پارٹی نہیں ہے. تو ڈیموکریسی کے اندر ہمیشہ ملٹی پارٹی سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے, دو پارٹیوں کا نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کہیں کہ کچھ اور ملکوں کے اندر دو پارٹیاں طاقتور ہو جاتی ہیں, وہ الیکشن جیتتی رہتی ہیں. لیکن خود انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں. ایک زمانے تک وہاں کانگریس پارٹی کی بالادستی تھی, لیکن وہ بالادستی اب ٹوٹ گئی ہے. وہاں بھی بہت ساری صوبائی پارٹیاں بہت عام ہو گئی ہیں ساؤتھ انڈیا کی. تو کولیشن پارٹیاں اب اس وقت بھی کانگریس کی حکومت جو ہے وہ کولیشن حکومت ہے. وہاں پر ایک اکیلی کانگریس میجورٹی کے اندر نہیں ہے. تو جمہوریت کی یہی خصوصیت ہے کہ آپ اگر میجورٹی کسی ایک پارٹی کی نہ ہو تو دوسری ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ مل کے, تو اس سے ایک چیک ہوتا ہے. بات اس میں صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری پارٹیوں میں اور ان کے نمائندوں کے اندر سیاسی پختگی جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ اگر نہیں ہوگی تو یہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں. سیاسی پختگی ہوتی ہے تو آسانی کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں, کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے سوال ضرور کرنا چاہیے, بلکہ چیلنج بھی کرنا چاہیے. مقررین نے اگر کوئی بات کہی ہے تو آپ ضرور اس کو چیلنج کریں, اور لیکن چیلنج کریں تو اس کے ساتھ ساتھ دلیل کی ضرورت ہے. یہ جب تک بحث مباحثہ نہیں ہوتا, بات جو ہے نا واضح ہوتی ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ویسے جو مجھے لگتا ہے کہ جو مغربی جمہوریت کے اندر ایک خوبصورت بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ کی نہ جا سکے, لیکن تو یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایون ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, میں آپ کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہوں. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو سوال اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کسی نتیجے میں پہنچ جائیں, کم از کم وہ ٹائم بھی کہیں پہ کنسنسس ہو جائے, یا نہیں بھی ہوتا تو ایک دوسرے کو بات تو سنا سکے اپنی. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی سوال اگر وہ کرنا چاہے اور یہ سوچے بغیر کہ اس کی کیا استعداد ہے, ہو سکتا ہے اس کی عمر سے بہت زیادہ ہو. ہر انسان میں ڈفرینٹ قسم کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں. کسی ٹیلنٹ کی مارکیٹ میں جگہ ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی. جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کے اندر, یہ تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایسے ٹیلنٹس رکھتے ہیں جن کی اس مارکیٹ کے اندر گنجائش نہیں ہوتی, قیمت نہیں لگ سکتی. تو ہر انسان کے اندر 50,000 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو خود نہیں پتا ہوتی, کہتے کہ چور ہوتے ہیں. تو یہ سوال آپ کریں گے تو ہمیں شاید کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر یہ آپ نے آبزرو کرتے ہیں میڈیا پہ یہ چیز بڑی کامن ہے کہ کوئی بھی MP MNA جب وہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ ذرا سا بھی کوئی بیان دیتا ہے اس کو یہ کہہ کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کیا ہے. فار انسٹنس مسٹر اعتزاز احسن از این ایگزامپل ان فرنٹ آف اس کہ جب وہ سپورٹ کر رہے تھے چیف جسٹس موومنٹ کو تو ان کو پیپلز پارٹی میں کافی کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا. تو اور جبکہ صدارتی نظام جو امریکہ میں ہے اس میں میری آبزرویشن کے حساب سے ان کی جو سینیٹرز ہیں وہ اپنی ہی پارٹی کے پریزیڈنٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, مگر ان کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہ جو پاکستان میں جو ان کے ساتھ طریقہ کار چلتا ہے, از اٹ اے پارٹ آف ڈیموکریسی اور واٹ اٹ از؟ کلچر نہیں ہے. یہ پارٹیوں کے میں اپنے اندر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں. ان کے یہاں بھی لیڈرشپ ایک خاندانی یا موریثی لیڈرشپ ہے. یہ تو ہماری ایک طرح سے پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, جو ظاہر غلط چیز ہے. پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہونے چاہیے, کیونکہ اختلافات نہیں ہوں گے تو پارٹی میں جو خرابیاں ہیں وہ دور نہیں ہوں گی. خرابیاں دور ہوتی ہیں اختلافات سے, تنقید کے ذریعے سے. اور میں نے جیسا آپ کو ذکر کیا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں کی خاص بات یہ ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کو چیلنج کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ارسطو نے اپنے استاد پلیٹو کو چیلنج کیا اور اس کی ہر بات کی مخالفت کی. جب تک یہ اختلافات نہیں چلیں گے آپ بات آگے نہیں بڑھتی ہے. خیالات
जो है, अगर वरना तकलीफ से काम नहीं होता है, तब तकलीफ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है आपने जो कहा ये हमारा कल्चर बना हुआ है ना, हम अपने कल्चर में बिल्कुल हम ये कहते हैं कि बुजुर्गों के सामने नहीं बोलना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं करना चाहिए, उनके सामने बस उनको खामोश रहना चाहिए। तो ये जिस किस्म की हमारी रिवायात हैं, इन रिवायात को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं तोड़ेंगे आपकी अपनी शख्सियत उभर के नहीं आएगी। ये जो होंगे या जो कुछ बेसिक पार्टी होती हैं जो पैसे लेके इलेक्शन होती हैं, यहाँ पे भी किसी एजेंसी वगैरह के थ्रू, आपका ख्याल है कि ये एक आवाम को गुमराही की तरफ लेके जाता है कि इसमें 2 लाख बंदा क्या कर दिया, ये किस तरह हो गया, ये बंदा क्या कर लिया, इसको इतने वोट मिलेंगे, या इस सिलसिले में? अब देखिए कि बहुत से लोग जो हैं ज़बरदस्ती लोगों को लाते हैं, जबकि लोग आने को तैयार नहीं होते। किसी न किसी को इक़्तिदार में तो ले आता है, कोई यानी किसी पे ड्यूटी लगाता है, तो आपको भी अंदाज़ा है ना कि ये लोग जो हैं रज़ाकाराना तौर पर नहीं आते हैं, कुछ जलसों के अंदर बुलाए जाते हैं या लाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब लोगों के ऊपर सामने आ गई हैं कि बहस मतलब कि बड़ा जलसा करना कोई बात नहीं है, असल चीज़ जो है वो ये है। लेकिन ठीक है, जलसे हो रहे हैं, एक अच्छी बात है कि इसमें मुख्तलिफ लीडर हज़रात जो हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लोगों के अंदर कम से कम ये तो है, लोगों को एहसास हो रहा है ना कि उनकी ज़रूरत इनको पड़ रही है। क्योंकि आज कोई भी लीडर जो है वो हमेशा बात ही करता है कि जी 18 करोड़ आवाम की, आवाम का नाम लिए बगैर वो आगे नहीं बढ़ता है, चाहे उसका ताल्लुक आवाम से ना हो, लेकिन आवाम का नाम लेने की ज़रूरत उसको क्यों पड़ी है? इसलिए कि उसको पता है कि आवाम के पास वोट है, आवाम के पास ताकत है, तो इसलिए आवाम का नाम लेने को मजबूर है आज लोग। सही। तो बात ये थी कि जागीरदार, वो क्लासिकल जागीरदार तो मेरे ख्याल में नहीं रहा, वो किसी न किसी तरह से एक कैपिटलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़ा हुआ है। उसे बीज चाहिए, उसे खाद चाहिए, उसे 100 चीज़ें चाहिए। वो जागीरदारी जिसको हम देखते हैं और जिस नज़रिए से हम देखते हैं, वो तो पाकिस्तान में रही नहीं। तो ये पाकिस्तान में जिस जागीरदारी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपने किस सेंस में ये बात की? अच्छा, ये आप और काफ़ी मतलब कि इस बात पे है कि क्या पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम है या ख़त्म हो गया है। यानी कुछ लोगों का जो आपने जिक्र किया वो ये है कि चूँकि क्लासिकल जागीरदारी तो खैर नहीं रही है, तो उनका कहना ये है कि चूँकि जागीरदार इस सरमायादाराना निज़ाम से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अब जागीरदाराना निज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है, सरमायादार निज़ाम आ गया है। लेकिन मेरी अपनी खुद की का जो मैंने लिखा भी था, जो बहस हुई थी कि देखें, जब तक जागीरदार का ताल्लुक ज़मीन से है और जब तक ज़मीन की पैदावार से उसको पैसा मिल रहा है, उस वक्त तक मतलब कि ज़मीन की अहमियत है, और ज़मीन की अहमियत के साथ साथ जागीरदार की भी अहमियत है। अब यकीनन जो कुछ पैदावार होती है उसको वो मार्केट में लाता है और मतलब कि वो उसको बाहर मुल्कों में भी भेजता है, लेकिन ज़मीन की अभी तक मतलब की हैसियत जो है और ज़मीन पर काबिल लोग मौजूद हैं। और इसलिए आप देखें कि बड़े बड़े ज़मींदार जागीरदार हैं। अब आप सिर्फ पकारा को तो नहीं कह सकते ना कि वो किस सरमायादार है या सनतकार है। आप ये जो ताजुल मौला या अमीन फ़हीम के ख़ानदान को तो नहीं कह सकते ना कि ये कोई सनतकार है, या जो साउथ पंजाब के अंदर जितने लोग हैं पीर जी ग्रुप जो है बेसिकली देखा जाए तो एक तो जागीरदारी की एक नई शक्ल आ गई है और इस नई शक्ल में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन इसको हम कहते हैं कि इस तरीके से जागीरदारी यूरोप के अंदर ख़त्म हुई थी, ख़ासतौर से इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड में वो ख़त्म हुई है कि जहाँ पर उनका फ्यूडल तबका जो है उसने मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसने इन्वेस्टमेंट किया कोल माइंस के अंदर, और वो एक तरह से सरमायादारी निज़ाम से जुड़ गया। लेकिन उस तरीके से हमारा जागीरदार तो सरमायादाराना निज़ाम से जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जागीरदाराना कल्चर जो है वो अभी तक आपके यहाँ मौजूद है, आपके यहाँ अभी तक सरमायादाराना कल्चर नहीं आया है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर कभी बात हम करेंगे कि ये सरमायादाराना कल्चर क्या होता है और जागीरदाराना कल्चर क्या होता है, क्या इसमें अभी तक हमारा कल्चर जागीरदाराना कल्चर है। मेरा ख्याल है कि अगला इसी पे रख लें आप, अगर डॉक्टर साहब टाइम दे सकें तो इन्हीं के साथ करते हैं और इसी पे करते हैं, क्योंकि मैं जो बात शुरू से कर रहा हूँ तारिक साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो कर रहे हैं सब पूरी बात, ये इसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अगला जो हमारा स्टडी सर्कल है उसकी डायरेक्शन यहीं से मुतय्यन होनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
अगर तो हमने सिर्फ पार्टीज की बातें करनी है, ये जी इधर क्या हो रहा है, जलसे क्यों हो रहे हैं, जुलूस, ये बहुत छोटी बात है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखिए जो पॉलिटिक्स हम इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं और जो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में हो रही है, ये सब सतही पॉलिटिक्स है एक्चुअली। ये इंसान के असल इश्यूज की पॉलिटिक्स ही नहीं है। इंसान के असल इश्यूज को सामने लेके आया नहीं जाता, उजागर ही नहीं किया जाता और उनके ऊपर बात ही नहीं की जाती। तो हम इस वक्त यहाँ जो बैठे हुए सारे, अगर हम भी यही बातें करेंगे कि जी ANP ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, जमात इस्लामी ने क्या किया, तो फिर हम इसी चीज में घुसे रहेंगे, हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक बात डेफिनेटली तय है, ये मुझे 100% मैंने जो जिंदगी में सीखा है, मुझे पता है, आप इसमें सोचिएगा। बल्कि सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे बताएं एक पार्लियामेंट है, उसके अंदर मुल्क के अंदर 80% गरीब लोग हैं, 80%, और पार्लियामेंट जो है उसके अंदर 80% अमीर लोग हैं। क्या कभी चेंज आ सकता है? अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, पार्लियामेंट जो है उसमें 80% गरीब लोग हैं, जिस तरह 80% लोग वैसे आबादी में भी हैं, क्या चीज आएगा? सर बेसिक कोर प्रॉब्लम्स आएंगी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ आएगी उस टाइम। क्या बात है। और क्या आएगा? अब फर्ज करें पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो गए 80% गरीब लोग चले जाते हैं, सर जिस तो तरह क्या करेंगे वो? जब आपकी सोसाइटी गरीब है और गरीब बंदा वहाँ पे गया तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, वो 80% अवाम की बात कर रहा है। वो करेगा क्या? वो मतलब लोग क्या मांगेंगे अपने लिए? वो जो 80% लोग हैं वो क्या मांगेंगे? सर अपने लिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ मांगेंगे, रोटी कपड़ा मकान एंड एक्सेट्रा, जो उसकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जिससे वो जिंदा रह सके। अच्छा, फर्ज करें कि आपके मुल्क में इतना गल्ला पैदा होता है, इतनी प्रोडक्ट्स बनती हैं, इतनी कमोडिटीज बनती हैं, ये सब आपको पता है, ये सब कुछ बनता है, ये कुछ फैक्ट्रीज बनाती हैं, कोई अनाज बनता है जमीन से, और वो 80% लोग जो कि गरीब तरीन लोग हैं वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं। हालांकि हो नहीं सकता वैसे, अगर हो सकता होता तो यहाँ मौजूद ना होता। तो अगर वो चले जाते हैं, फर्ज करें, तो वो सारी जो तकसीम है हर चीज की, क्या वो उसको उसी तरह रहने देंगे जो पहले थी? रहने देंगे? हाँ, वो क्या लाएंगे? इक्वालिटी वो क्यों लाएंगे? उन्हें उस दर्द का एहसास है जिसको वो बियर करके यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब अब हम इस नतीजे पे कम से कम अगर पहुंच गए ना, यही वो सफर है जो हमने तय करना है आप लोगों के साथ, और ये हमने आगे से आगे जाना है। हमने वो पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में बात करनी है, उसकी बुनियाद फराहम करने की कोशिश करनी है। आप सब लोग जो यहाँ पे आ जाए, आप इनिशिएटिव ले जाए। इनिशिएटिव लेने वाला लीडर होता है, आपको पता है। अब जो तारीख बताती है ना, वो ये होती है कि जो आदमी इनिशिएट करता है ना किसी चीज को, वो फिर बाकी लोगों तक बात पहुंचाता है, बाकी लोगों तक बात पहुंचाता है, तो वो लीडर है। सिंपल सी बात है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो आप सब लोग अपने आप को छोटा मोटा ना समझिए, आपका यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई छोटा मोटा वैसे भी कोई नहीं होता, हमारी फलसफे के मुताबिक तमाम इंसान बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई समझना भी है तो ये समझ ले कि आज वो छोटा मोटा नहीं रहा, क्योंकि आज आप यहाँ आ गए। अगर आपने इस मुल्क को, फिर इस दुनिया को ठीक करना है, इसको मसावात के सुनों पे दोबारा कायम करना है, उसके लिए अपनी तगदो करनी है, तो आज से आप लीडर हैं। क्योंकि जो आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ चलेंगे, हम आपसे सीखेंगे, आप आपसे सीखेंगे, तो जिस तरफ हम जा रहे होंगे दुनिया उसको उल्टी जा रही है। तो ये बहुत मुश्किल लोग हैं जो ये काम करते हैं। आप सारे बड़े मुश्किल लोग हैं, आपने अपनी मुश्किल चीज़ें जो है आसान करके लोगों तक पहुँचानी है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूँगा कि आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा सा पढ़ा के भी आए। बल्कि डॉक्टर से हम अभी कुछ लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के मुझे बताएंगे हमें कि कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से मज़ामीन और क्या चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं। इधर आने से पहले थोड़ा बहुत उसको मुताला कर लें तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अगला हमारा स्टडीज लेवल। तो मुसावात में पॉलिटिक्स होगी तो मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा उसके साथ, चाहे मैं वर्कर के तौर पे खड़ा हूँ। जिस वजह से मुल्क में मुसावात या इंसान की बराबरी के ऊपर सियासी नारा लगेगा तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। ये मैं आपसे वादा हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वो जरूर लिखवा लीजिएगा। हर टॉपिक और ये अच्छा है, साथ ही साथ कोई रिकमेंड भी करें
कि क्या पढ़ना चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा अगर किताबें, आर्टिकल्स, ये चीज़ें पढ़ते रहें। तो नेक्स्ट वैसे आप किस तरीके से आप रखते हैं, वीकली या फोर्टनाइटली? अभी तो हमने वैसे मंथली किया है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है अगर आपकी अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना मैं दिल्ली मेरी ख्वाहिश है कि आप नेक्स्ट टाइम वो उसी पे लेक्चर दें, जागीरदाराना समाज और समाजदाराना समाज जो है उसकी फ़र्क जो है। तो तारी साहब हो सकता है पहले भी कर सकते हैं, आप मैं बात कर लूँगा तारी साहब से भी, तो अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा। फरवरी में अगर आप फरवरी के आखिर में 20 के बाद रख लें तो मैं कुछ और लोगों के नाम आपको बताऊंगा जिनसे उनको बुला के आप लेक्चर दिलवाएं यहाँ। हम तो चाहेंगे आप जरूर बुलाएं, और अगर आप उनको साथ भी कर सकते हैं तो और नहीं मैंने कहा मेरे अलावा भी कुछ बड़े अच्छे लोग हैं। वो हमें तो मुझे आप ही दरकार हैं नहीं और भी लोगों तक हम जाएंगे, जरूर टच करेंगे। नहीं नेक्स्ट अगर आप देते हैं कि आप कर दीजिएगा फरवरी में, अगर रखें कोई 20-22 फरवरी को ऐसे देख लीजिएगा कोई, तो हम रखेंगे। एक तरह से देखें तारीख जो है ना वो बड़ा आदमी को शोर देती है, तरक्की में मुझे पता नहीं अभी तक है। अच्छा हाँ, इन्होंने अपनी जो लाइब्रेरी एक ज़माने में तो रखी काफ़ी मेरी किताबें, अब मुझे पता नहीं किताबें खुली रहती हैं, मेरे दादा की लोग ले भी जाती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि रखी हैं ताकि लोग यहाँ बैठ के पढ़ें, और ओपन शेल्फ है, बैठ के पढ़ें भी। तो मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन शायद अगर हो तो यहाँ बैठ के भी पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में अगर आप कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर भी शायद अवेलेबल होंगे तो मिल जाएंगी आपको, अगर आप तलाश करें। डॉक्टर साहब ये अगर ये 2 किताबें हम पढ़ लेते हैं तो ये जब बात करेंगे तो हम इनसे बहुत सारे सवालात कर सकेंगे। और मेरा ख्याल से मकसद ये भी होना चाहिए, सिर्फ लेक्चर देना नहीं होना चाहिए, बल्कि लेक्चर से पहले अगर आप इनको बता दें कि भाई इस टॉपिक की लेक्चर है, कमेंट करके किताबें, तो वो फिर ज़्यादा मुख्य है ना। इसको यानी टीवी के टॉक शोज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई फजूल चीज़ है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। इसको थोड़ा सा एकेडमिक और इल्मी रखना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा यानी पुख्तगी के साथ एक चीज़ को समझ सकें, सीख सकें। पहले स्टडी सर्किल जो होते थे उनका मकसद ये हुआ करता था। सारे लोग आ जाएं और होपफुली डॉक्टर साहब से टाई अप करके हम अगले स्टडी सर्किल की जो डेट्स वगैरह हैं वो कन्वे कर देंगे आपको। मैक्सिमम दोस्तों की अटेंडेंस आ गई है, जिस दोस्त की अटेंडेंस नहीं लगी तो वो अपनी अटेंडेंस लगा दे ताकि उसको एक्सेस किया जा सके दोबारा और इन्फॉर्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया।